We are now live to attendees. Okay. I, CA Pawan Mittal, Secretary Hisar Branch of NIRC of ICI, welcome you all on behalf of Hisar Branch of NIRC of ICI, respected senior member of the branch, and my young friends. Today we have with us CA Hansraj Chugji, Honorable Central Council Member, as a chief guest of this webinar, and very renowned faculty and guru of our profession, CA Dr. Girish Ahuja ji, as a guest speaker of the today's webinar. I welcome you, Chug sir, and also I welcome you, CA Dr. Girish Ahuja ji, sir. Topic of the today's webinar is Benami Provision Act 2016 and Section 168 to 169C of the Income Tax Act. Now, before inviting Ahuja sir, I would like to invite CA Asa Jain ji, chairperson of our branch, for her welcome address. Please, ma'am. Thank you, Pawan ji. Good afternoon, Tax Guru CA Dr. Girish Ahuja ji, CA Hansraj Chugji, chief guest, the whole managing committee team, and all the members who have joined for today's webinar. I, CA Asha Jain, am honored to welcome the Tax Guru Girish Ahuja ji at a webinar of Hisar branch on the important topic, the Benami Prohibition Amendment Act 2016 and Section 68 to 69C of the Income Tax Act. Dr. Girish Ahuja ji needs no introduction, as majority of the members of Hisar branch are his students. Though I did not get an opportunity to be his student, as I have done my studies from Mumbai, but still I am glad to share that I am a big fan of Dr. Girish Ahuja ji, the way he has mastered the complete income tax law and the josh and energy level that he has is really commendable. Dr. Girish Ahuja ji has done his graduation and post-graduation from Sri Ram College of Commerce and PhD from the Faculty of Management Studies, University of Delhi. He had been a rank holder throughout his career. He was nominated by the Government of India as a member of the task force for redrafting the Income Tax Act and the new income tax law. And the report thereof was to be submitted to the Finance Minister on 18th August 2019. He is an independent director in the large number of companies. He is a nominated member of the high-powered committee constituted by Government of India to look into the issue of applicability of MAT provisions in the case of foreign companies and FFIs and any other issues relating to the applicability of direct tax provisions. He has authored numerous books and is a tax consultant for many industries and NGOs. And he has delivered more than 4,000 lectures on various platforms. Today we are blessed to have him with us. Thank you, Giriji, for accepting our invitation. Welcome. Have with us as the chief guest of today's webinar, Honorable CA Hansraj Chugji, Central Council member, who is also a company secretary, a law graduate, and insolvency professional, and besides being a chartered accountant. He has more than 30 years experience in indirect tax, foreign tax laws, customs, FEMA, etc. He is currently a Central Council member and has been nominated as the chairman of the Committee for Export of CA Services and WTO, chairman of International Placement Directorate, and vice chairman of Committee for Members in Industry and Business. He is a regular speaker on goods and service tax, foreign trade policy, insolvency, bankruptcy, etc. on various platforms. Thank you, Hansraj ji, for accepting our invitation and sparing your valuable time. Now I would like CA Hansraj Chugji to say a few words. Over to you, Hansraj ji. Thank you, Asa Madam, the chairperson of the Hisar branch, the branch to whom I love the most for so many reasons, and Pawanji, the secretary of the Hisar branch, and other friends from the Hisar branch and the members, the senior members, my friends, and from the Hisar and the other regions also, and whosoever is joining as a participants. And thanks to the Guruji, it's my privilege to be on the sharing the dais, not physically, but on a virtual mode, to whom I admire the most since my student time. Like rightly said by Asaji, so many words about Guruji. I can only share with each one of you
that today I'm there in the council or the at a point of time in the regional council or even a chartered accountant. So Guruji has its own has played the role to bring it to this status to me. Sharing with you since my student time, I was a science graduate. I did my BSc and then I jumped into the chartered accountancy profession. And the subject which I never thought of or till my graduation I never heard of is the income tax and the accounts and the other subjects. And believe me, there was no coaching classes like today, so many classes, so many guidance, so many. And under the guidance of Giri Sahuja ji, our guru today, guru for all, I got the highest number in my subjects. Though it was a quite difficult time, it used to be 2-3% results. And the number I'll be talking to, it is 82 numbers, 82 marks in my direct in this income tax final exam. How it was a difficult task, but the guidance it has come from the Guruji only. So that was the situation. I became a chartered accountant. Same way I entered into the regional council. His hand was there on my head and on my shoulders also. Same way in the council also I reached there. So this is the journey. Basically, the life is not with yourself only. Life is an enjoyable. Life is with a team. Life is with those who become as a guide and the philosopher and the friend in your life. And same is the thought process with our Guruji also. And for me, so many friends has come around me, those with whose support I am there in the council. Friends, the responsibility given to me in my second year of this in the council relates with the looking beyond the boundaries. Beyond the boundary means we are competent enough to be a real global profession. In that respect only, I am there in the council in this second year. Though in the very first year, I was a vice chairman of the same committee. I am also today in the second year also. But the first year, the chairmanship was not been given. The second year with full support from the leadership of Atul ji as a president and the Nihar Jambusaria ji as a vice president with their support, I'm heading the committee which is of the utmost importance for the each one of you as a professional. And we have to look beyond the boundaries. Boundaries are almost equal. Like we talk about, we are a global profession today, whether it is the international taxation, whether it is the IFRS, whether we talk about the GST also, the indirect tax also. Same mechanism is there in different countries across the globe. But unfortunately, our members are not making use of their knowledge to reach out to the global clients, to reach out and join hands with the global professionals also, so that it is with that kind of spirit. We must merge like a real global professional. So it's only the few, those who are under the accounting professional outsourcing, only few, those who are rendering the services to the overseas clients or overseas corporates, though having been so many competency and the capabilities, whether it is the quality look the clients look at, or the trust they must have on the professionals, or the commitment level we as a professional have the that kind of the hard working or the spirit, those kind of things. Having been so many good qualities around us, within us, even then we are not able to achieve that kind of the status whatsoever we have to be. So with those kind of the little thought, we have to open up ourselves, open our mind, and with the regulated or unregulated atmosphere. Basically, there are two parts to it. Everywhere there is a profession of the auditing is regulated, but there are the certain areas which are unregulated. Like we talk about the bookkeeping or the accounting side, it is unregulated all across the globe. There is no regulatory body in any of the country, like it is not there in India also. But what is regulated? A testing function or the auditing function is regulated. We cannot jump on there on the regulated functions, because it is unless until there is some kind of MRA or some kind of provisions of their own land of only law of the land permit us. But if we talk about the other areas for the financial and the accounting services, we talk about the taxation, indirect tax,
financial services, merger acquisition, advisory services. These are open across the globe. So we must target, because today technology has on the way, technology has proven to be we are very close. Whether a person from the Hisar serve to a client sitting, those who is sitting there in Delhi, and same way you can serve to the client sitting there in US also, because technology has advanced to a stage. There is no need for the physical visits. There is no need to interact physically. So it's a technology which has given us the way to look beyond the boundary. With those kind of understanding, we have to move. And there are definitely government also have the promotional schemes to promote this. Basically, our is a profession of accounting is been taken over by the government also in a manner. It has been brought under the focus area, or we talk about the champion services. And there is a huge scope. And I'll be sharing you some documents also with you through my every quarterly newsletter, which has been allowed by the council to promote under the this export of CA services and WTO, which gives an understanding. There is a huge opportunity across the globe. Developed nation also, like we talk about the US, Canada, UK, we talk about the Australia, all across, or the developing countries, landlocked countries, smaller countries. We can go even in some of the countries like Bhutan and the Malaysia. Even auditing is also been allowed for the Indian Chartered Accountants. Those are the status. So, but we have to initiate. We have to initiate by oneself. Who can raise raise to one? The oneself can only raise to the oneself. If you start thinking about, so the automatically way will come. The automatically has come in, so way will also be drawn into. So basically, my idea to share it with each one of you, India is a land of opportunities, no doubt about it. We can survive on the India, but we can grow if we look beyond the boundaries, beyond India also. So these are the basically being a chairman of the committee, I have shared with each one of you. And I can only assure you as a chairman of the committee or as a council member, I am always there with each one of you to the branches across the region, not only across the region, across India. I have started interacting with the regional council and the branches across. I have mailed also, my committee has already initiated, we have already spoken with the branches in the eastern region and the regional council members from the eastern region. This for the central region, we have already date has been finalized. It has been scheduled on 4th of this August. Northern Regional Council and the branches from the northern region, we are targeting to have fixed the date from the western region also and southern region also. Basically, we have to find out, we have to grow beyond the boundaries. So with these kind of words, I'm just sharing with you, this committee has already entered with the MOUs with the SCPC, Invest India. There is a MOU which is on the final stage with the Export Promotion Council of the SCZ and SCZ and EOUs. Those are on the process. Those things is being done with. So basically, we see like there is a huge opportunities. We have to give the find out the way and ultimately build our capacity in such a manner so that we must get the benefit of the, whether it is the FDIs, whether it is the ease of doing business. India is on the right track, bringing out best of the solutions, best of the policy, best of the strategies for the development of Atmanirbharta of the India. And we have to engage ourselves with the business community in such a manner so that we look beyond the boundaries. So friends, with these words, I'm very grateful and thankful to the team at the Hisar branch, more particularly headed by the Asha Jain, the chairperson, Pawan Mittalji, the secretary, Bharat Jain, and other team members also, though I could not find out there on the screen. But I'm very grateful and thankful to the whole of the team of the Hisar branch and the member participants also. I assure my availability and the whatsoever the little bit, wherever you need my support, I'm always there with each one of you. And I'm very thankful to the Guruji for giving me the support all the time whenever I need him, and hope the same blessings and the wishes will be continuing to be
for the future, for my life also. I have a great regard for the Ahuja ji, those who have been all the time for the profession, all the time. I can vouch since my student time when I entered into this profession. So his dedication and dedication of so many faculties, so many people for this profession, so many good wishes for this profession is there from the all corners. So that is the strength for we all. That is the strength, whether it is the knowledge sharing by them or the guidance wherever one requires, or the connect with the governments also. So he is always there with the profession, and same way he'll continue to be with the profession also and with me also for the future also. Sir, आपकी थैंक यू। बिल्कुल 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 कहने की जरूरत नहीं है आपको। चलो, थैंक यू आशा जी, थैंक यू पवन जी, एंड थैंक यू द टीम। गुरु जी की ब्लेसिंग सबके साथ है। I appreciate. Over to Asha ji. Thank you. Now I request CA Girish Ahuja ji to please start his session. Good afternoon to everyone. The Central Council member and a very good friend of mine, of course. These days I can say today is the Friendship Day, so I will talk about our friends only. CA Hansraj Chugh ji, and of course the chairperson of Hisar branch, CA Asha Jain ji, the secretary of the branch, CA Pawan Mittal ji, and executive member is also sitting, one gentleman, Sadish Jain ji. Ladies and gentlemen. Well, friend, let me tell you, I'm talking to you Benami law. I have not chosen it. I left it to the Hisar branch. She consulted the senior, and senior wanted me to discuss on Benami law because it is a law which was made about 4 years back, and approximately, and I must have delivered about 200 lectures on that, on Benami law. I told her, if you want to talk about anything else, we can do that, but she said no, people want Benami law. अभी भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मेरे पास अभी भी चांस है, अभी चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपने अभी ऐड किया 68 वगैरह, वो भी मैं करूंगा, नो डाउट। अब और भी कोई चेंज करना चाहे तो कर दीजिए, क्योंकि मुझे बेनामी लॉ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सब्जेक्ट की बात नहीं है, कितने बार कर दिया था, त्यागी मेरे मूड में था कि कोई नई चीज करें, लेकिन चलिए मैं बेनामी लॉ ही करता हूं। देखिए, दिस लॉ which is now the present law. There was a law earlier also from 1988, जिसका नाम था बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। 88 से पहले बहुत अटेम्प्ट किए गए, बट लॉ नहीं लाया गया। वहां तो इंकरेज करते थे बेनामी ट्रांजैक्शन। अगर आप ट्रस्ट को देखें पुराने, तो वहां बेनामी ट्रांजैक्शन अलाउड होती, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बहुत कुछ हुआ तो 88 में लॉ ले आए, ओनली विद 9 सेक्शंस। लेकिन देखिए विडंबना, देखिए, आफ्टर 28 years of this law, no rules were made, no authorities were constituted. ये सिर्फ पेपर में था, it was only on paper. Absolutely no implementation was there of this law. In 2011, the previous government came out with the idea. The idea was, let us repeal this law and bring a new law in lieu of that. The standing committee said, what will happen of the properties which are acquired between 1988 and 2011? Once you repeal that law, bring a new law, then they will no more be a Benami transaction. Idea drop कर दिया गया। ये 2015, उसके बाद 16 में आकर ये लॉ बनाया गया बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। लेकिन मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, जब ये लॉ बनाया गया है, दे हैव केप्ट डीमोनेटाइजेशन इन देयर माइंड। इसका मतलब डीमोनेटाइजेशन उसके पहले ही दिमाग में घूम रहा था, नहीं तो जो प्रोविजन डाले गए हैं, देखिए डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर इवनिंग को हुआ, बताया गया, और ये लॉ पास हो गया 1 नवंबर 2016 को। 1 नवंबर 2016 से इंप्लीमेंट हुआ। तो व्हाट काइंड ऑफ ए लॉ इज दिस? देखिए, डीमोनेटाइजेशन को दिमाग में रख के, इसका मतलब ये प्रोसेस थिंकिंग चल रही थी कि डीमोनेटाइजेशन होना है, वो हमने नहीं पता लगा, नहीं तो इस लॉ में वो प्रोविजन क्यों डाल दिए गए जो ऑलमोस्ट डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। सो
वेल थॉट आउट ऑफ लॉ. व्हाट दे सजेस्टेड इज कि हम इसको रिपील नहीं करेंगे. Even Mr. Jaitley, the finance minister, at that particular point of time said, how can we repeal the old law? अगर old law repeal कर देंगे तो सारी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएंगी जो करी. ठीक है, पुरानी गवर्नमेंट ने वो लॉ नहीं बनाया, वो रूल्स नहीं बनाए, अथॉरिटी नहीं बनाई, तो एक बड़ा टेक्निकल वे कर दिया. That they have brought an amendment in the this act. Earlier there was only 9 sections, and they have introduced 63 amendments in the existing law. जो अभी भी लॉ का नाम 1988 ही है, लेकिन नाम चेंज कर दिया. मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी प्लानिंग से 63 सेक्शन ऐड कर दिए गए. So 9 plus 63, there are 72 sections in the new law incorporated in there. And then उस वक्त लिखा था, देखिए मैं, ये एक्ट का नाम था, पहले नाम था बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988. लेकिन जब अमेंडमेंट आई तो सेक्शन 6 में, और सॉरी सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 ही बदल दिया, उसका नाम ही बदल दिया. Now the name of the act is, this act may be called Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988. Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988. अब नाम बदल गया. पुराना नाम था बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988. Now the name is Prohibition of Benami Property Transaction 1988. It is applicable. Subsection 2 में लिखा है, first subsection 2. थोड़ी देर में सुन लेना पहले. It is applicable to whole of India except Jammu and Kashmir. लेकिन रुकिए, it has been made applicable now in Jammu and Kashmir also, because ये जो सेक्शन लिखा था उसको डिलीट कर दिया गया जब यूनियन टेरिटरी बनी, और जब वो पूरा लॉ आया तो उसमें लिख दिया सेक्शन 3, सेक्शन 1, सबसेक्शन 2, where it was written except Jammu and Kashmir, these words have been omitted. So ये इवन जम्मू एंड कश्मीर को भी लग चुका है ये प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988. जम्मू कश्मीर में पहले स्पेशल स्टेटस था, इसलिए कोई भी नया लॉ आते थे वो एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर नहीं होता था. याद है, सर्विस टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता था. वो तो जीएसटी जब आया और उसमें वैट था, और वैट की वजह से उनको करना पड़ा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होता. लेकिन अब तो जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी, and that's why now this law has also been made applicable to Jammu and Kashmir, Union Territory of Jammu and Kashmir. आइए, अब ये applicable कब से है? 19th May 1988. 19th May 1988. ये तो section 1 हो गया. I've talked to you section 1, section 1, section 1(3). अब मैं आ रहा हूँ चार्जिंग सेक्शन. आपको पता है सेक्शन 2 मेनली सभी एक्ट का डेफिनेशन होता है. सेक्शन 2 इज ऑलवेज डेफिनेशन. सो मेनली तो ये सेक्शन 2 नहीं आएगा, अब आएगा ये सेक्शन डेफिनेशन हम करेंगे बाद में. लेट अस कम टू सेक्शन 3, चार्जिंग सेक्शन. बड़ा इंटरेस्टिंग है. सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग है. 1 लाइन कवर्स एवरीथिंग. सेक्शन चार्जिंग क्या कह रहा है? सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, no person shall enter into any benami transaction, full stop. क्या बोला? No person shall enter into any benami transaction. ये सेक्शन 3(1) में लिखा है. इसको हम दोबारा लेंगे. फिर सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 देखिए क्या कहता है. Whosoever enters into a benami transaction shall be punishable for imprisonment which may extend to 3 years and or fine or both. बोला क्या है कि अगर आप बेनामी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको जो है you will be liable, punishable for imprisonment maximum period of 3 years which may extend to 3 years or fine or both. लेकिन ये पुराना है ये 3(2), क्योंकि पहले हमेशा यही होता था, इम्प्रिजनमेंट तो होती नहीं थी, सिर्फ फाइन में ही छूट जाते थे. लेकिन अब सुनिए सेक्शन 3(3) क्या कहता है.
if any person has entered into a Benami transaction on or after commencement of this Amendment Act. ये Amendment Act कब आया? 1st November 2016. So if you have entered into any Benami transaction on or after 1/11/2016, you shall be liable for punishment as per Chapter 7 of the Income Tax Act. Chapter 7 of the Provision of Benami Property Act. उसको Chapter 7 में डाल दिया और वहां पर Section 53, 54 और 55 तीन सेक्शन है, वो हम वहां पर बात करें. सो अब दो तरह का केस है. अगर बेनामी ट्रांजैक्शन 1 नवंबर 2016 के पहले की है तो उस केस में तो आप छूट सकते हैं सिर्फ फाइन देकर भी. ऐसे तो पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट भी है which may extend to 3 years or fine or both. लेकिन ये ट्रांजैक्शन बिटवीन 1988 and before 1st November 2016, इसके लिए मैक्सिमम 3 साल या फाइन या बोथ है. But if you have entered into a transaction on or after 1/11/2016, let me tell you, the penalty, I will not say, the imprisonment and the fine, both are given under Section 53, 54, 55, known as Chapter 7 of the Act. Chapter 7 of this Benami Act. वो हम वहां पर करेंगे. अब आइए वापस आते हैं. Section 3(1). Section 3(1) कहता है, no person shall enter into any Benami transaction. सिर्फ एक सेंटेंस है, तो मुझे बताना पड़ेगा मीनिंग ऑफ ए पर्सन, मुझे बताना पड़ेगा मीनिंग ऑफ ए बेनामी ट्रांजैक्शन. अरे बेनामी ट्रांजैक्शन बताते बताते मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि नाम तो चैप्टर का है, एक्ट का नाम है प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988. तो मुझे बेनामी प्रॉपर्टी भी बताना पड़ेगा. तो आइए अब हम सेक्शन 2 में जाते हैं. पहला सेक्शन है 10(2) क्लॉज 24. देखिए सेक्शन 2 जो होता है उसमें क्लॉजेज होते हैं, सब सेक्शन नहीं होता. 90% लोग जो बोलते हैं, आप कहीं भी सुन लेना, वो सारे सब सेक्शन बोलते हैं. ये बिल्कुल गलत है, ये सब सेक्शन नहीं होता. कई सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें सब सेक्शन नहीं आता, उसमें क्लॉजेज आती हैं, क्योंकि जो जेनरिक सेक्शन होता है, कॉमन सेक्शन होता है, वहां सब सेक्शन नहीं होता है. कभी मैं बोल रहा हूँ सेक्शन 2 क्लॉज 24, आप कहेंगे ये तो गलत बोल रहे हैं, ये तो सब सेक्शन 24 होना था. बिल्कुल गलत. सेक्शन 2 क्लॉज 24, क्योंकि सेक्शन का नाम क्या है? सेक्शन 2 का डेफिनेशन. एक डेफिनेशन तो दे रखी हुई है, कई डेफिनेशन दे रखी है. जब सब सेक्शन आता है ना, तो वो मेन सेक्शन की बात करता है, और फिर जब क्लॉज आता है वो सब सेक्शन की बात करता है. ये तो क्लॉज है, तो ये तो सीधा जेनरिक सेक्शन. सो सेक्शन 2 क्लॉज 24 बेनामी एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है, काफी मिलती जुलती है वो सेक्शन 231 जो इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन थी. इफ यू रिमेंबर, अंडर इनकम टैक्स पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूसिव थी. पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन. 7 कैटेगरी होती, लेकिन इसमें उन्होंने 6 कर दी, क्योंकि लोकल अथॉरिटी बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती. तो यहां कर दिया सेक्शन 2 क्लॉज 24 में. क्या बोला? पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, नंबर 2 एचयूएफ, नंबर 3 फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी ऑफ कोर्स, नंबर 4 अ कंपनी, नंबर 5 एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एंड द लास्ट इज एनी अदर आर्टिफिशियल बट जुरिडिशियल पर्सन. वहां 7 थे, यहाँ 6. तो हर आदमी बेनामी में कवर हो सकता है, जरूरी नहीं इंडिविजुअल, फर्म भी, कंपनी भी, सब हो सकता. ये तो आ गया पर्सन की डेफिनेशन. अब मुझे ले जाना पड़ेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी. बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये सेक्शन 2 क्लॉज 8 में लिखा है. बेनामी प्रॉपर्टी मीन्स एनी काइंड ऑफ एसेट, any kind of asset which is subject matter. Any property means Benami property means
property of any kind. Property of any kind. I'm again saying, Benami property means property of any kind, which is the subject matter of Benami transaction and includes the proceeds of such property. क्या कह रहा है? Benami property means property of every kind. Property of every kind. तो मुझे बताना पड़ेगा प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है. बताता हूं. Property of any kind, which is subject matter of the Benami transaction. तो मुझे बेनामी ट्रांजैक्शन तो बताना ही है, which is subject matter of the Benami transaction and includes the proceeds of such property. ये कोई सोच कर कह दे कि भैया मैंने तो बेनामी प्रॉपर्टी बेच बाज दी है 88 के बाद, अब मुझे कौन पकड़ सकता है? बिल्कुल गलत है. Proceeds of such property is also known as बेनामी प्रॉपर्टी. आपने उठाकर उसको बेचकर FDR बना ली, उसको बेचकर कोई और एसेट ले ली, तो वो भी बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी. उसको बेचकर कैश रख लिया, वो भी बेनामी माना जाएगा. इट इज बेनामी प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड. समझ गया? विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एंड इंक्लूड्स द प्रोसीड्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी. अब आइए जरा, अब मुझे प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देनी है. मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आशा जी तो आ गई, एक आध और सामने आए तो पता लगता रहता है कि कोई मुझे सुन रहा है, वो मेरी फेस रीडिंग कर रहा है. अभी तो मैं ब्लैंक बात कर रहा हूँ, दीवारें नजर आ रही हैं, फोटो लगा रखी हैं वाइट, और कोई अपनी फोटो बनाकर चला गया. somebody should be there. प्लीज थोड़े एक दो आदमी सामने आ जाएं, मुझे शक्ल दिखाएं, ताकि मुझे जब कोई चीज सुनानी पड़ती है तो मैं फेस रीडिंग करता हूँ कि उनको समझ में आ रहा है, हाँ है कि ना है. तो इसलिए एक आध को और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली कम वीडियो में सामने आ जाएं और मेरी शक्ल मेरे को नजर आ जाएगी तो मुझे जरा हौसला मिलता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, दीवारों से बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर से बात नहीं कर रहा. पवन जी भी आ गए, थैंक यू वेरी मच. तो आइए अब मैं सुना रहा हूं. अब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सुना, देख के हैरान रह जाओगे. दुनिया की कोई चीज है, एनीथिंग ऑन द अर्थ, अबव द अर्थ एंड बिलो द अर्थ, सारी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ गया. सेक्शन 2 क्लॉज 26 क्या कहता है? Property means any asset, whether movable or immovable, whether tangible or intangible, corporeal or non-corporeal, and includes any right, any interest, any legal document, any instrument evidencing the title to that property or a right to that property, and if that property is capable of conversion into any other form, the property in that form also, and includes the proceeds of. इसलिए इंप्रेशन मारा, लेकिन अब ब्रेक करके. प्रॉपर्टी मीन्स एनी काइंड ऑफ एसेट, वेदर मूवेबल और इमूवेबल. बताने की जरूरत नहीं है कि मूवेबल एसेट और इमूवेबल क्या होती है. मैंने एसेट बोला है, कैपिटल एसेट नहीं बोला है. एसेट वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल. बताने की जरूरत नहीं है टेंजिबल क्या होता है और इनटेंजिबल क्या होता है. कॉर्पोरियल और नॉन कॉर्पोरियल. कॉर्पोरियल का मतलब ही वो जो टेंजिबल होती है, नॉन कॉर्पोरियल मीन्स जो टेंजिबल नहीं है. सो कॉर्पोरियल और नॉन कॉर्पोरियल. आगे सुनिए क्या करता है. एंड इंक्लूड्स एनी राइट्स, any interest, any legal document, any instrument evidencing the title to or interest in that property. तो सिंपल ये नहीं लेना, it includes any right in that asset, any right, any interest, any legal document, any instrument evidencing the title to that property. And if that property is capable of conversion into any other form, the property in that form also, and includes the proceeds of that property. तो कुछ तो छोड़ा नहीं, सारी डेफिनेशन आ गई. हर तरह की एसेट, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट, इंटरेस्ट, राइट, लीगल डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग द टाइटल टू और इंटरेस्ट एंड प्रॉपर्टी, सबको कवर कर दिया है. ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है. सो मैंने आपको बोला नो पर्सन, मैंने पर्सन बता दिया.
shall enter into any बेनामी ट्रांजेक्शन। मैंने बेनामी प्रॉपर्टी बता दिया और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बता दिया। अब तो मेन सेक्शन में आ रहे हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है। ये समझ में आ गया तो 90% चीजें तो समझ में आ जाएगी, लेकिन दिल नहीं करेगा समझने का, क्योंकि दिल तो करेगा मैं बच जाऊं किसी तरीके से। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा हर आदमी ये सोचता रहेगा कि मैं यहां फंस गया या बच गया, मैं फंस गया या बच गया, ये मेरी प्रॉपर्टी बेनामी है या नहीं है, ये सोचते रह जाओगे। आइए हम शुरू करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। ये लोगों को बड़ी मिस्टेक है, लोग कहते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 क्लॉज ए। जी नहीं, मैं बोलूंगा सेक्शन 2 क्लॉज 9 सब क्लॉज ए। सब क्लॉज ए नहीं है, 4 सब क्लॉजेस हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये 4 सब क्लॉजेस हैं। और जो पहली क्लॉज है सेक्शन 2 क्लॉज 9 सब क्लॉज ए, उसमें 4 आइटम्स हैं। अरे किसी को तो यही नहीं पता, एक होता है सेक्शन, सेक्शन के नीचे आता है सब सेक्शन, सब सेक्शन के नीचे आता है क्लॉज, क्लॉज के नीचे आता है सब क्लॉज, सब क्लॉज के नीचे आता है क्या आता है? अब कोई कहेंगे प्रोवाइजो, जी नहीं, सब क्लॉज के नीचे आता है आइटम, आइटम के नीचे आता है सब आइटम, सब आइटम के नीचे आता है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट के नीचे आता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, उसके नीचे आता है प्रोवाइडेड आल्सो दैट। 19 प्रोवाइजो हैं कई सेक्शन में, और उसके नीचे आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अरे सर समझ में नहीं आता ये लॉ क्या है, और इसीलिए मैं ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। सेक्शन 2 क्लॉज 19 सब क्लॉज ए, कैपिटल ए, क्योंकि उसके सब क्लॉज ए के नीचे स्मॉल ए बी सी डी भी लिखा हुआ है, बीमारी स्मॉल भी लिखा हुआ है, तो इसलिए पहले सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। सेक्शन 2 क्लॉज 19 सब क्लॉज 4 हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। लेकिन अब मैं कैपिटल ए कर रहा हूं, बी सी डी बाद में करेंगे। तो सेक्शन 2 क्लॉज 19 कैपिटल ए पता क्या कहता है? बेनामी ट्रांजैक्शन मींस ए ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट, ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट। अब आएगा क्लॉज, सब क्लॉज ए, सॉरी सब क्लॉज नहीं, आइटम ए, सब क्लॉज तो बोल दिया मैंने, ए आइटम ए, ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू और हेल्ड बाय अ पर्सन, transferred to or held by the person, and the consideration the same is paid or provided by other person। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी एंड आना है इसमें। अभी मैंने एंड है, 2 क्लॉजेज इकट्ठी हैं, 2 आइटम, एक आइटम आ गई आइटम ए, मैं आइटम बोल रहा हूं, लोग बोलेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 क्लॉज ए, और उसके बाद बोलेंगे सब क्लॉज ए। बिल्कुल गलत है। सेक्शन 2 क्लॉज 19 सब क्लॉज कैपिटल ए एंड देन आइटम सब आइटम ए। उस आइटम में लिखा है, पहले लिख दिया अरेंजमेंट वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू और हेल्ड बाय ए पर्सन बट द कंसीडर सेम इज पेड और प्रोवाइडेड बाय सम अदर पर्सन एंड द प्रॉपर्टी इज फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट whether direct or indirect of the person who has provided that consideration। सर क्लॉज ए में बहुत 2 चीजें हैं, जो सब क्लॉज ए बोला, मेन सब क्लॉज ए कैपिटल, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। क्या कि एक तो प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू, मैंने उसको दे दी, और हेल्ड बाय अ पर्सन and the consideration the same is paid or provided by other person। मैंने एक प्रॉपर्टी मनोज जी के नाम पे खरीद ली या पवन जी के नाम पे खरीद ली, पवन जी तो है ही नहीं, अब तो मेरे को किसी और के नाम खरीदनी पड़ेगी। ये मिस्टर जेंटलमैन जैन साहब हैं, कोई इनका नाम है अधीश जैन होंगे शायद, तो अधीश जैन के नाम पे खरीद ली। आई हैव ट्रांसफर्ड दी प्रॉपर्टी टू अधीश or Adish holds that property, he holds that property, but the consideration the same is paid or provided by me।
मैंने कंसीडरेशन दिया, पेमेंट करी, लेकिन नाम किसके लिए ली? अदीश जैन के नाम ली, या मैंने उसने होल्ड करी, तब भी ये बेनामी नहीं है. एंड दिस प्रॉपर्टी शुड बी फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट, whether direct or indirect, of the person who has paid or provided that consideration. So अदीश जैन के पास मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने पेमेंट करी, लेकिन वो प्रॉपर्टी इज फॉर माय इमीडिएट बेनिफिट और माय फ्यूचर बेनिफिट, whether direct or indirect, whether direct or indirect, of the person who has provided the consideration. तो आपके नाम मैंने होल्ड करी है, लेकिन बेनिफिशियरी कौन है? इमीडिएट बेनिफिशियरी मैं हूं या फ्यूचर बेनिफिशियरी हूं? फ्यूचर भी हो सकता है, फ्यूचर बेनिफिशियरी हूं, और उस केस में जिसने पैसा दिया वो है या उसकी फैमिली, तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ गया ना, उसके बेनिफिट के लिए है, तो ये बेनामी. सो क्लॉज, सब क्लॉज ए में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी. जब मैं बी और सी और डी में आऊंगा, वहां पर ये बेनिफिशियरी क्लॉज नहीं है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु हैज पेड दैट पेमेंट, ऐसा नहीं है. वो सिर्फ एक में ही है. कौन से में है? अरेंजमेंट और वो सॉरी it is an what you call it is agreement or arrangement. It is arrangement or a transaction or an arrangement. ट्रांजेक्शन क्या होती है? हमने कोई ट्रांजेक्शन की, दो पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हुई. अरेंजमेंट जरूरी नहीं है कि उसमें मनी इन्वॉल्व हो, कंसिडरेशन इन्वॉल्व, लेकिन उसमें अरेंजमेंट कर लिया मैंने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर लिया, वो भी तो अरेंजमेंट ही है. वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू अदीश जैन or held by Adhish Jain, but the consideration of same is provided or paid by me. अभी भी complete नहीं है. And it is for the immediate or future benefit of the person who has provided that consideration, तो होगा. अगर मैंने अदीश जैन को दे दी और अदीश जैन ही यूज करता है, अदीश जैन ही मेरे बेनिफिट के लिए कहीं भी नहीं होगा, ना फ्यूचर में भी नहीं होगा, तो 56(2)(10) लग जाए, कोई बात नहीं इनकम टैक्स का, लेकिन बेनामी नहीं है. बेनामी होने में कंसेक्यूटिव दोनों क्लास है, कंजक्टिव क्लास है कि पहले हेल्ड बाय हिम, पेमेंट मेड बाय मी, एंड इट इज फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द पर्सन हु हैव प्रोवाइडेड दैट कंसिडरेशन. क्लियर हो गया? लेकिन इसके अंदर भी 4 एक्सेप्शंस हैं. हालांकि प्रॉपर्टी हेल्ड बाय समबडी एल्स है, लेकिन फिर भी 4 एक्सेप्शन है. नंबर 1, प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ कर्ता और एनी मेंबर ऑफ द HUF. Name of it is for the benefit of the family, and the consideration of the same is provided by the HUF from its known sources. Please note the word known sources. बोला, sources of income नहीं बोला, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि इनकम ही आएगी. क्योंकि कल मुझे कोई गिफ्ट दे दे मेंबर, तो वो इनकम होती ही नहीं है. मेंबर से कोई HUF को गिफ्ट आ जाए या मुझे कोई इनहेरिटेंस में मिल जाए, तो आपने नॉन सोर्स बोला है, सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं बोले. फंड्स किसके थे? HUF के. नॉर्मली HUF के नाम प्रॉपर्टी नहीं ली जाती, कर्ता के नाम ली जाती है या मेंबर ऑफ द HUF के नाम ली जाती है. इवन इमूवेबल प्रॉपर्टी भी जब लेते हैं तो थ्रू कर्ता लेते हैं, थ्रू मेंबर लेते हैं, HUF के नाम नहीं ली जाती. तो ये बेनामी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बेनिफिशियरी कौन है इसका? HUF है. पेमेंट किसने करी? HUF ने करी. आप बात समझ रहे हैं? लेकिन नाम किसके लिए है? कर्ता के. तो आप ये नहीं कह सकते ट्रांसफर टू कर्ता और हेल्ड बाई कर्ता, पेमेंट मेड बाई HUF एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ HUF. ये तो एक्सेप्शन में आ गया, इसको नहीं लेंगे. एंड सेकेंड इज प्रॉपर्टी हेल्ड बाई यू इन फाइड्यूशरी कैपेसिटी. फाइड्यूशरी कैपेसिटी, देखिए एक ट्रस्ट है. ट्रस्ट की ट्रस्टी कौन होता है? फिड्यूशरी कैपेसिटी में होता है. ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट, वो होल्ड करता है प्रॉपर्टी इन फिड्यूशरी कैपेसिटी. जब फिड्यूशरी कैपेसिटी में है तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है. और यहां तो नॉन सोर्स भी नहीं लिखा है, यहां तो नॉन सोर्स भी नहीं लिखा है. एंड सेकेंड, पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. आप कई बार प्रॉपर्टी, आप फर्म के नाम प्रॉपर्टी नहीं लेते, थ्रू पार्टनर लेते हो. पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म
लेकिन फंड्स किसके हैं? फंड्स फर्म के हैं। अब कई बार आप डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, कई बार आप क्या होता है, कंपनी ने गाड़ी खरीदनी है, अब कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराने जाओ कई जगह पर, कई स्टेटों में, तो वहां पर रजिस्ट्रेशन फीस बहुत हाई लगती है। लेकिन अगर इंडिविजुअल के नाम कराओ तो रजिस्ट्रेशन फीस बड़ी कम होती है। तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टर के नाम ले लेते हैं। तो ये कहते हैं फिड्यूशियरी कैपेसिटी है, डायरेक्टर के नाम पे लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जीक्यूटर, अरे विल लिख दी और विल में एग्जीक्यूटर बना दिया मुझे कि उसके मरने के बाद मैं वो प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कर दूंगा। जब वो एग्जीक्यूटर में बना तो प्रॉपर्टी तो मेरे हाथ में आ गई, लेकिन मैं ओनर थोड़ी हूं, मैं तो एग्जीक्यूटर हूं। तो वो भी फिड्यूशियरी कैपेसिटी है, वो भी फिड्यूशियरी कैपेसिटी है। और एनी अदर विच में भी प्रिस्क्राइब, अरे आपके शेयर डीमैट में, डीमैट अपने अकाउंट खोल रखा है, शेयर है, होल्डर ऑफ द शेयर कौन है? डीमैट, डीमैट वाले हैं, लेकिन आप कौन है? बेनिफिशियरी आप हैं, वो थोड़ी है। तो डीमैट कंपनी और डीमैट वाला होल्डिंग द शेयर्स इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी ऑन अवर बिहाफ। तो जो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में है उस केस में नॉन सोर्स भी नहीं लिखा। अरे डीमैट वालों को क्या पता मैंने कच्चे के पैसे दिए कि पक्के के पैसे दे दिए, उसको क्यों रिस्पॉन्सिबल बना दे? वहां नॉन सोर्स नहीं लिखा है। अरे ट्रस्ट का मुझे ट्रस्टी बना दिया, मुझे क्या पता ट्रस्ट को जो प्रॉपर्टी दी वो कच्चे की थी, पक्के की थी या नंबर 2 की थी, हाउ डू आई नो? तो इसलिए यहाँ सोर्स नोन नहीं लिखा है। अब एग्जीक्यूटर है, मुझे कहा गया मेरे मरने, एक्स ने कहा मेरे इसके मरने के बाद मुझे बना दिया एग्जीक्यूटर। मुझे क्या पता जो उसका डिजीज्ड है उसने प्रॉपर्टी नॉन सोर्स से कमाई थी या अननोन सोर्स से कमाई थी, तो मुझे तो नहीं पता ना। आई एम ए ट्रस्टी ओनली, सो वहां पर नॉन सोर्स नहीं है। नंबर 3, प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ स्पाउस और एनी चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए पुराने एक्ट में 2016 से पहले वाले एक्ट में था प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ वाइफ और अनमैरिड डॉटर, और अनमैरिड डॉटर। पुराना जमाना था, बस सोचते थे औरतें तो कमाती ही नहीं है, उनको क्या पता चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के चेयरपर्सन भी बन जाती, उनको क्या पता। वो तो यही सोचते रहे कि औरतें तो कमाती नहीं है, हाउस वाइफ होती है, इसलिए पुराने लॉ में वाइफ लिख दिया था। अब स्पाउस है, अब बीवियां ज्यादा कमाती हैं, हस्बैंड कई बार कम कमाते हैं। मुझे नहीं पता आशा जी के बारे में, मैं वैसे मार रहा हूँ, मुझे नहीं पता बीवियां क्या कमा रही और हस्बैंड के क्या करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो जमाना चला गया, इसीलिए लिखा प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ ए स्पाउस, मतलब बीवी ले लिए, लेडी ने अपने हस्बैंड के नाम ले ली या हस्बैंड ने लेडी के नाम ले ली, ये बेनामी नहीं है, प्रोवाइडेड इट इज फ्रॉम नोन सोर्सेज ऑफ दैट इंडिविजुअल, उसने नोन सोर्सेज से ली है। और हेल्ड इन द नेम ऑफ ए चाइल्ड, पहले अनमैरिड डॉटर लेते थे, अब ऐसे नहीं है, एनी चाइल्ड। अब चाइल्ड, किसी ने पूछा चाइल्ड का मतलब क्या है, क्या ये माइनर चाइल्ड होता है? अरे एक 60-year-old पर्सन इज ऑल्सो चाइल्ड टू समबडी। चाइल्ड का मतलब जरूरी उसका माइनर चाइल्ड नहीं लेना है, चाइल्ड होता है। आप देख लीजिए 80C में आप अपने चाइल्ड के लिए आप दे सकते हैं LIC, तो यह थोड़ी लिखा है कि माइनर चाइल्ड के लिए दे सकते हैं। 80 साल का भी है, डिपेंडेंट है कि नहीं है, अगर उसकी माँ जिंदा है तो दे सकती है। तो वो मेरा चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल। Child can be major, child can be minor, child can be male, child can be female, child can be married, child can be unmarried, child can be adopted, child can be natural, adopted under Adoption Act, वो भी होगा। और बताऊं child के बारे में, child can be legitimate और child can be illegitimate. Children कभी illegitimate नहीं होते, it is the relationship with the parents which are illegitimate. Children कभी illegitimate नहीं होते, parents के relationship illegitimate होते। और हमारी कंट्री में तो रिवाज है, यहाँ बच्चे नर्सिंग होम में पैदा होते हैं और बाप कोर्ट में पैदा होता है। बाप कोर्ट में पैदा हुआ था, पता है ना कौन सा बाप कोर्ट में पैदा हुआ था? नारायण दत्त तिवारी साहब कोर्ट में पैदा हुए, क्योंकि वहां पर DNA के लिए कह दिया गया, तो वो कहता है हाँ मैं ही इसका बाप। आप समझ रहे हैं, बाप आजकल कोर्ट में पैदा होते हैं, ध्यान रखना, बाप कोर्ट में भी पैदा हो सकते हैं, बच्चे तो नर्सिंग होम में पैदा होते हैं। तो ये जो है ना इलेजिटिमेट चाइल्ड भी कवर्ड है। हालांकि उसके बाप, बेटे को बाप का प्यार नहीं था कि भाई नारायण दत्त तिवारी मेरे बाप हो गए, उनको तो प्यार था बाप के पैसे के ऊपर, करोड़ों अरबों रुपया नारायण दत्त तिवारी का उसको मिल जाना था। क्या मिला? वो भी मर गया बेचारा, उसको उसका भी मर्डर हो गया, आपको पता ही है। पैसा कोई साथ में नहीं लेके जाएगा, पैसा सब यहीं छोड़ देंगे। तो भगवान से प्रार्थना करो, अच्छे काम करो,
अच्छे आचरण रहे तो ठीक रहेगा। पैसा आना है तो भगवान खुद दे देगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। गलत कामों से लोगे तो गलत ही नतीजे निकलते, निकल गए ना नतीजे। पैसों के प्रेम में कोई कहता है उसकी बीवी ने मार दिया, कोई कहता है किसने मार दिया, हमें क्या पता किसने मार दिया। अभी देख लो ना, एक स्टोरी ऑलरेडी चल रही है सुशांत राजपूत, उसका भी पता नहीं किसने मार दिया। रोज एक नया आ जाता है। मैं तो 10 दिन से टीवी देख रहा हूं, सिवाय सुशांत राजपूत के और कुछ है ही नहीं टीवी। रोजाना कोई नई स्टेटमेंट आ जाती है, कभी रिया की आ गई, कभी किसी की दिशा की आ गई, कभी उसके दोस्त की आ गई, कभी किसकी आ गई। ये सब पैसों का खेल है सर। ये पैसा एक ऐसी चीज है जो दुनिया को पागल कर देता है, और मैं कहता हूं इससे प्रेम नहीं होना चाहिए। वापस आ रहा हूं, ये तो बातों से बातें निकालता हूं, क्योंकि लोग क्या होता है, अगर ऐसी बातें नहीं करूं तो लोग कहते हैं सर ये तो बड़ा बोरिंग हो गया, तो बात करनी पड़ती है। सो अभी मैंने तीन एक्सेप्शन दे दी। प्रॉपर्टी फर्स्ट HUF करता और वो, सेकेंडली फिड्यूशियरी कैपेसिटी, थर्ड स्पाउस और चाइल्ड। यार बेन, अब चौथा सुनना बड़े ध्यान से। यहां बड़े लोग मारे गए, बहुत लोग मारे जाएंगे। प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट, प्रोवाइडेड, प्लीज नोट द वर्ड, प्रोवाइडेड यू आर द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अधीश जी जरा ध्यान से सुनिए। जब लोग, एक छोटे जगह से लोग आता है, CA करके दिल्ली आ गया, या छोटे जगह से कोई बड़ा आदमी बन जाता है, राजपूत जैसे बन गया, तो वो क्या करता है, वो दिखाता है कि मैंने बड़े अच्छे पैसे कमाए हैं। बाप के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, अपने गांव में बाप के नाम पे ले, माँ के नाम पे ले ली, ये सोचकर कि माँ बाप का तो मैं सेवक हूं, मैंने उनकी वजह से एक तरफ आया। लेकिन ये बेनामी ट्रांजैक्शन है। जब तक आप उसमें जॉइंट ओनर नहीं होंगे, ये बेनामी ट्रांजैक्शन है। क्योंकि गवर्नमेंट अफसर तो करते ही यही। गवर्नमेंट अफसर अपने नाम थोड़ी लेते हैं, अपनी फैमिली के नाम थोड़ी लेते हैं, अपने बच्चों के नाम थोड़ी लेते हैं। वो तो ब्लैक मनी कहाँ किसके नाम ले लेते हैं, अपने भाई के नाम, अपने ताए के, अपने बाप के नाम, अपनी माँ के नाम, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम, वो ले लेते हैं। वो क्या कह रहा है, अगर भाई के नाम लेना है, बहन के नाम लेना है, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट लेना है, तो इट शुड बी इन योर जॉइंट नेम। उसके नाम के साथ आपका नाम जुड़ा होना चाहिए, चाहे आपका शेयर 1% हो, नाम जरूर हो। अगर आपने उनके नाम पे ले लिया तो ये बेनामी है, बेनामी है। कोई कह सकता है सर लिया, बट इट इज नॉट फॉर इमीडिएट बेनिफिट और फ्यूचर बेनिफिट, वो तो उन्हीं के नाम पर है। बड़ा मुश्किल है प्रूव करना। माँ के नाम लिया और आप एक ही बच्चा हो, तो अल्टीमेटली तो आपका फ्यूचर बेनिफिट तो आप ही का है, आप ही का तो फ्यूचर बेनिफिट है। या आपने ऐसा कोई अरेंजमेंट कर रखा है कि ताकि आप ही को मिले, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है प्रूव करना। लेकिन इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट को साथ में जोड़ना है। आपने अपने माँ बाप भाई बहन के नाम नहीं लेना। अब आपसे रिक्वेस्ट है, 1 नवंबर 2016 के बाद कभी भी लें, अपना नाम जरूर डाल लें। क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, कई बार एक फाइल बना ली माँ की, माँ के पास, और माँ के नाम पर FDR ले ली सीधी 2 करोड़ 20 लाख की। सर लीजिए, गिफ्ट दे दीजिए। पहले गिफ्ट देने के बाद तो वापस होती नहीं ना। यू मेक ए गिफ्ट टू देम एंड देन दे वांट टू डू व्हाटएवर दे लाइक। को गिफ्ट है रिलेटिव को तो 56(2)10 लगेगा ही। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर तो गिफ्ट भी नहीं दे सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर के अंदर रूल है कि 50,000 से ऊपर प्रॉपर्टी खुद खरीदेगा या फैमिली मेंबर खरीदेगा या गिफ्ट देगा तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो आप अगर करना चाहें तो प्रॉपर्टी की गिफ्ट कर दें, और गिफ्ट करके, क्योंकि हरियाणा में तो गिफ्ट भी अलाउड है। प्रॉपर्टी गिफ्ट के सिर्फ 2,000 ही तो लगते हैं, ब्लड रिलेटेड की गिफ्ट के सिर्फ 2,000 लगते हैं आपके यहाँ। हमारे दिल्ली में तो 6% लगता है स्टैंप ड्यूटी, आपके यहाँ तो सिर्फ 2,000 से स्टैंप ड्यूटी हो जाती है इन हरियाणा एंड पंजाब। आप रजिस्ट्री करा सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। गिफ्ट दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने उनके नाम ली और उन्हीं के नाम रखी और आपका नाम बीच में नहीं है, और वो फिर कभी प्रूफ हो गया दैट इट इज फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो उस केस में आप देख लेना वो बेनामी मानी जाएगी, वो बेनामी मानी जाएगी। क्योंकि हम वाइफ को कई बार ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि उसमें क्लबिंग प्रोविजन लगते हैं, स्पाउस को क्लबिंग प्रोविजन लगते हैं।
तो मैं क्या कहता हूं अपने भाई को, तो मेरे बीवी को दे दे, मैं तेरी बीवी को दे दूं। क्रॉस ट्राइब करते हैं, क्रॉस ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उस वक्त भी ध्यान रखना कि आपका नाम ज्वाइंट होना चाहिए। अगर आप अपने भाई या अपनी बहन या अपने लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट से लेंगे। क्लियर हो गया? ये 4 एक्सेप्शंस हैं और ये सब क्लॉज ए में है। सब क्लॉज ए में 2 चीजें ध्यान रखना। एक नंबर 1 कि वहां पर 2 कंडीशंस हैं, ट्रांसफर्ड टू और हेल्ड बाय ए पर्सन, कंसिडरेशन पेड बाय अदर पर्सन, एंड it is for immediate or future benefit whether direct or indirect to the person who has paid the consideration. And 4 exception है, 4 exception उसी में लिखी हुई है। 1 in the name of कर्ता or HUF or member of the HUF, known sources. Number 2 in the name of the fiduciary capacity, no mention of known sources. Number 3 in the name of the spouse or child, again from known sources. Number 4 in the name of brother, sister, etc., provided you are joint owner and known source. अगर joint owner नहीं है तो बेनामी मानी जाएगी। सो हाथ जोड़ के विनती है, क्या क्या हम पता क्या करते हैं, माँ की एक फाइल क्रिएट करनी है, उसके नाम FDR सीधी बनवानी। ऐसे मत करिए, पहले गिफ्ट दीजिए मदर को और फिर मदर FDR बना ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। सिर्फ वाइफ को गिफ्ट क्लबिंग है या डॉटर इन लॉ को क्लबिंग है, बाकी कहाँ क्लबिंग है? माँ को दीजिए, बाप को दीजिए, भाई को दीजिए, बहन को दीजिए और उनके जीजा को दीजिए, जिसको मर्जी दीजिए। 56(2)(10) लगता ही नहीं। तो पहले गिफ्ट दे दो, फिर जो मर्जी करो। अगर गिफ्ट नहीं देनी तो फिर ज्वाइंट नेम होना चाहिए और नॉन सोर्सेज से है तो हम आपको बेनामी नहीं करेंगे। ये सब क्लॉज ए खत्म हुई है। मैंने 4 सब क्लॉज ही कही थी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। अब कैपिटल बी है। ये समझ में आ गया पहला वाला पोर्शन? अधीश जी समझ में आ गया? आशा जी ने हाँ कर दी, सिर तो हिला दो यार। यस सर, यस सर। नहीं आशा जी ने कर दी, अधीश जी सिर ही नहीं ला रहे। अरे कह दो यस और नो, यूं कर दो। समझ में आ गया तो ठीक है, या उनको आवाज ही नहीं आ रही अधीश जी? नहीं, हाँ ऐसे ही कुछ हो रहा लग रहा है। अधीश जी आवाज नहीं आ रही क्या? वो ऑफ है ना उनका सर, बीच बीच में कनेक्शन। ओ सर, सिर का कनेक्शन तो ऑफ नहीं है। सिर हिला दो। सिर हिलाने में तो कनेक्शन ऑफ नहीं है, ये म्यूट है, ये म्यूट कर लीजिए, लेकिन सिर हिला दीजिए। हम फेस रिएक्शन पढ़ते हैं ताकि हमें ये लगता है कि आपको समझ में आ गई, और कुछ नहीं। तभी तो मैं कह रहा था 2-4 लोग मेरे सामने आएंगे तो मुझे अच्छा लगता है। आइए वापस। अब कैपिटल बी, मैं बाद में बात करता हूँ, नोट कर रहे हैं वो उस चीज को। हाँ जी, कैपिटल बी की बात सुनिए। Benami transaction means a transaction or an arrangement in respect of a property where the transaction is carried on or made in a fictitious name. Where it is carried on that in a fictitious or made in a fictitious name. आपने कोई ट्रांजेक्शन करी है या अरेंजमेंट किया इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी विच इज कैरिड ऑन और मेड इन ए फिक्टिशियस नेम। वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रामलाल, श्यामलाल के नाम पर आपने ज्वेलरी खरीद ली, बोगस। कई बार खरीद लेते हैं रामलाल, श्यामलाल। और अब तो गाड़ियां भी पहले खरीद लेते थे, अब तो गाड़ियों में मुश्किल आ गई, क्योंकि आप नई गाड़ी खरीदेंगे तो आपको पता है पैन नंबर वगैरह है। लेकिन अभी भी पुरानी गाड़ी 2 लाख से कम खरीदें तो पैन नंबर नहीं होता। तो वो चीजों का कह रहा है, यू हैव बॉट ए प्रॉपर्टी इन फिक्टिशियस नेम। ए ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट, प्रॉपर्टी का मतलब इमूवेबल नहीं है। मैंने प्रॉपर्टी का मतलब तो बड़ा वाइड बताया है। मूवेबल, मूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कॉर्पोरियल, नॉन कॉर्पोरियल, राइट, इंटरेस्ट, इंस्ट्रूमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द टाइटल और इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। कुछ भी होगा, अगर वो है फिक्टिशियस नेम पे तो ये बेनामी नहीं मानी। इट इज अ बेनामी ट्रांजैक्शन, ए ट्रांजैक्शन इन ए फिक्टिशियस नेम। आइए अब क्लॉज सी में चलते हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन इज ए ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट where the owner of the property says, I am not aware, it is not in my knowledge that I am the owner of this property। ये तो रोज होता है। डिमोनेटाइजेशन में भी तो यही हुआ है। लोगों ने पैसे जमा करा दिए अपने ड्राइवर के नाम पर, अपने एम्प्लॉय के नाम पर, अपनी मेड सर्वेंट के नाम पर, अपने दोस्तों के नाम पर, और जनधन अकाउंट में पैसे जमा करा।
और एक मेरे को याद है, अमृतसर की पार्टी है, नाम नहीं लूंगा, मुझे फोन आ गया जब डिमोनेटाइजेशन हुआ 10 दिन के अंदर ही उन्होंने 300 आदमियों के नाम पर 2-2 एम्प्लॉय के नाम पर 2-2 लाख जमा करा बैंक में। 2-2 लाख अलाउड था, 2.5 लाख भी था, 2-2 तो थे ही ना, 300 आदमियों के नाम जमा करा। वो बैंक वाले ने उसके पैसे जमा कराने के बाद बैंक वाले ने पैसे निकाल के भी दे दिए। वाह वंडरफुल, क्या अरेंजमेंट था। ये फेल कराने वाले तो बैंक वाले ही हैं, दे दिए। वो पता लग गया, इनकम डिपार्टमेंट से हो गया, सर्वे हुआ, उनको गया तो पूछा गया तो एम्प्लॉय ने स्टेटमेंट दी, सर हमें नहीं पता, हमारा तो आदत ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं, इन्होंने हमसे कोई कैश बैंक अकाउंट खोल लिया होगा, हमसे साइन करा लिए होंगे, वी आर नॉट अवेयर, इट इज नॉट इन माई नॉलेज, आई एम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, इट इज नॉट इन माई नॉलेज। और ये हम तो पहले बहुत कुछ करा करते थे पुराने जमाने में। पुराने जमाने में एक स्टोरी सुनाऊं, मैं एक दिन बैठा था तो मेरी वाइफ सामने बैठी, तो मैंने एक चेक इशू करना था वाइफ के अकाउंट से, तो मैंने वाइफ को कहा जरा साइन कर दे, उसने साइन कर दिए। जब वो गया चेक तो डिसऑनर हो गया, सिग्नेचर्स वेरी, ये कैसे हो सकता है। बाद में आया जब मैंने अकाउंट खोला था, दुखी तो मैंने मारी हुई है, साइन तो मैंने ही करे हुए थे अपनी वाइफ के अकाउंट के। पहले तो यही होता था, अब आधार कार्ड आ गया, पैन आ गया, पहले कौन से आधार और पैन होते थे। ओ याद आया, ओहो ये तो साइन मेरे हैं, वाइफ के तो चलते ही नहीं है, ओरिजिनल साइन फेल, डुप्लीकेट साइन पास। तो ये तो हम रोज करते थे, हम अपनी बीवियों को कुछ बताते ही नहीं थे। अरे सर्च के साइन में क्या होता है, ये भी अभी हुआ है, ये बेनामी में सर्च के साइन पे सर्च हुआ, बीवी को एक कमरे में बिठा दिया, उसको एक कमरे में, बीवी से पूछा आप क्या करते हैं, कहा जी मैं हाउसवाइफ हूँ। उसने पूछा आपके कितने बच्चे, होने का इतने बच्चे। उसने पूछा आपका कितना खर्चा, होने का ये है वो है। उसने कहा आप कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, कहती कौन सी मीटिंग अटेंड करते हैं, मैं वो करती हूँ मीटिंग, वो वाली जो होती है किट्टी पार्टी मीटिंग। नहीं आप कोई कंपनी की मीटिंग अटेंड करते हैं। वो कहते वो क्या है, कि आपने कभी मीटिंग अटेंड की है। कहती नहीं। आप कहीं डायरेक्टर है। मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे तो कोई पता नहीं कि मैं कोई डायरेक्टर हूँ, मुझे नहीं पता मैं डायरेक्टर हूँ। आपको कोई सैलरी मिलती है, मुझे सैलरी मिलती है, मुझे तो आज तक इन्होंने एक पैसा नहीं दिया सैलरी का, ये कैसे हो सकता है। आप बताइए आप कहाँ का पार्टनर है, मैं पार्टनर हूँ, मुझे तो कभी बताया ही नहीं उन्होंने। और तो ऐसे केसेस में भी ये बेनामी है, क्योंकि स्टेटमेंट दे रही है वो बीवी ऑन ओथ सर्च के टाइम पे कि देखिए मैं कोई पार्टनर नहीं हूं, मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये ज्वेलरी मेरी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, या आपके नाम पे ये है, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है, मेरे नाम पे तो कोई शेयर नहीं है। अरे वो कहेगा तुम्हारे नाम पे 5 करोड़ के शेयर है, तो मुझे तो पता नहीं। देखिए वो चीज अलग है कि आपने बताया और नॉन सोर्स से, तो वहां पर वो नहीं आता। लेकिन यहाँ तो स्टेटमेंट दे रही है, आई एम नॉट अवेयर, इट इज नॉट इन माई नॉलेज। यहाँ तो बेनिफिट देखना ही नहीं है, आई एम नॉट अवेयर, इट इज नॉट इन माई नॉलेज, आई एम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ऐसी स्टेटमेंटें आती हैं। और हमारे यहाँ तो जब रिवाज है कि बीवियों को छुपा कर रखते थे, जमाना बदल गया है। देखता तो याद एक ही रखता है, 50 साल के बाद बड़े बड़े महायोद्धा बीवी के आगे हाथ जोड़ने लग जाते हैं। 50 साल से पहले तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, 50 के बाद कहते हैं तू ही है, अब मुझे कोई नहीं पूछता। ना बच्चे पूछते, बच्चे बहुत कम है जो पूछते हैं, ये सोच के चलना। मैं सबको बता रहा हूँ, अगर किसी ने मोती दान दिए तो बच्चे पूछ लेंगे, नहीं तो बच्चे कोई नहीं पूछते। और लड़कियां फिर भी पूछ लेती हैं, लड़कों को तो फोन करना पड़ता है, बेटा तू ठीक है, कोई चाहिए तो नहीं तेरे को, अगर वो बाहर कहीं है तो। बेटा कभी फोन नहीं करता, बेटियां तो फिर भी कर लेती है, शादीशुदा बेटियां भी कर लेती हैं, लेकिन बेटे आजकल के पता है आपको क्या है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक बीवी को तो बीवी वो पूछती है और तो कोई पूछता नहीं है, तो उसको तो कम से कम बता दो तुम्हारे पास क्या है, क्यों फंस जाओगे, क्यों बेनामी ट्रांजैक्शन में रगड़े में आ जाओगे। तो ये वाला मैंने बताया एग्जांपल, दैट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेज आई एम नॉट अवेयर, इट इज नॉट इन माय नॉलेज। तो ये बेनामी में इसलिए भी किया गया, डिमोनेटाइजेशन में लोगों के अकाउंट आपने जो खुलवा दिए और उसमें पैसे जमा करवा दिए और उसमें आपने पैसे बाद में निकाल लिए, वो सारे के सारे यही कह रहे हैं आई एम नॉट अवेयर, इट्स नॉट इन माय नॉलेज, क्योंकि फंस जाएंगे वो, इसलिए वो इनको कह रहे हैं। तो वो प्रॉपर्टी भी, पैसा भी गया और जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन बताऊंगा थोड़ी देर में कि वो कह देता मेरा ही है, तो कम से कम ये तो बच जाता, वो बताऊंगा बात अगली बार। ये था सी वाला। अब डी देखिए, बेनामी ट्रांजैक्शन मीन्स ए ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी वेयर द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल और इज फिक्टिशियस। वो कहता किसने जमा कराया मुझे पता ही नहीं,
हुआ क्या, बेनामी के टाइम पे, अगर आपने टीवी देख रहे होंगे उन दिनों में, सारे देख रहे थे, बीमारी जब से रात को मित्रों आया था, रात को 8 बजे मित्रों आया था कि मित्रों आज से 500,000 बंद हो गया, सबका डर लगने लग गया था। उस वक्त क्या हुआ कि एक लेडी आई टीवी पे, लेडी कांस्टेबल थी, और उसने अपनी पासबुक दिखाई कि मेरे अकाउंट में किसी ने 1 करोड़ रुपए जमा करा दिए, ये मेरे नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये किसके है। इतनी शरीफ लेडी, और वो भी पुलिस वाली होकर इतनी शरीफ की भी कांस्टेबल कहती है मेरे नहीं। उसको पता था मेरा पता लग गया तो मेरी नौकरी भी जाएगी और ये 1 करोड़ भी जाएगा और साथ में मेरे जेल भी हो जाए, तो इसलिए उसने टीवी पे आके बोल दिया मुझे नहीं पता ये किसने जमा कराया। मतलब द पर्सन हु हैड प्रोवाइडेड दैट पेड दैट पेमेंट इज नॉट ट्रेसेबल, पता ही नहीं किसने दी, मुझे नहीं पता। कई बार आप कहते हैं ना, कई बार एम्प्लॉय को भेज देते हैं या किसी को भेज देते हैं, ये पैसे लेके चले जाओ, गाड़ी पकड़ी जाती है, रास्ते में पैसे पकड़े जाते हैं, इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया, बताओ ये 2 करोड़ रुपया तुम गाड़ी में ले जा रहे हो, किसका है? कहता जी मैं तो कंड्यूट हूं, मुझे नहीं पता किसका है, मुझे तो कहा गया था इसको छोड़ाओ, आपको 2,000 रुपए दे देंगे, आप 10,000 दे देंगे या 50,000 रुपए दे देंगे, इस गाड़ी को छोड़कर वहां दे आओ, मुझे नहीं पता सर किसका है। तो ये पैसा तो जाएगा ही जाएगा, ये तो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड और पेड द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल। या तो बताइए किसका है, नहीं बताएंगे तो कैटेगरी डी में आ जाएंगे। कई वो नोट पकड़े गए थे बेनामी के टाइम पे, अगर याद हो तो, कई कुछ पकड़ा गया था और अभी भी पकड़ा जाता है। आपको पता नहीं है, जब आजकल तो एयरलाइन बंद है क्योंकि जी चल रहा है, एयरलाइन में जाओ ना तो एयर इंटेलिजेंस यूनिट होती है, आप सोचते हो मैं अपने बैग में पैसा ले जा रहा हूँ क्योंकि उसमें लिखा होता है नकदी और ज्वेलरी अलाउड है, लेकिन आपको नहीं पता, सिक्योरिटी वाले जब देख लेते हैं ना इसमें पैसा पड़ा है तो वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बैठे होते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, वो आपको रोकते नहीं है, आपको जाने देते हैं। आप सोचते हो कि मेरा कुछ पता ही नहीं लगा किसी को, आप चले गए और जहां आप उतरते हैं वहीं आपको पकड़ लेंगे। जहां आप बॉम्बे जा रहे हो तो बॉम्बे पकड़ लेंगे, ला दिखाइए ये बैग में क्या है, क्या सोर्स है, क्या ज्वेलरी का सोर्स है, बताइए। आप बात समझ रहे हैं? ये रोज होता है, इसे कहते हैं एयर इंटेलिजेंस यूनिट। ये सब एयरपोर्ट्स पे हैं, इनकम टैक्स की ऑफिस बैठा होता है, सिक्योरिटी वालों से बात करते हैं और वो भी वो देखते रहते हैं, जो वो सीसीटीवी लगा होता है। तो बी केयरफुल कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 4 केसेस हो गए बेनामी ट्रांजैक्शन, क्लियर हो गए। कैपिटल ए ट्रांसफर टू हेल्ड बाय एंड फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट। कैपिटल बी fictitious name. Capital C, that owner of the property says I'm not aware, it is not my knowledge that I'm the owner of that property. And capital D, that you say that the person who has provided or paid that is not traceable. तो ये चारों केस बेनामी ट्रांजैक्शन माने जाते हैं। अगर ये बेनामी ट्रांजैक्शन है तो फिर एक अब ध्यान से सुनना, कल भी बताया था, आशा जी को शायद याद हो, सेक्शन 2(9), सेक्शन 2 क्लॉज 9 के नीचे एक एक्सप्लेनेशन डाल रखी है। मैं उसको एक्सप्लेनेशन पहले जो लॉ की तरह लिखा है वैसे लिखूंगा, फिर बोलूंगा जो उल्टा करेंगे। वो लिखता है where there is a part performance of the contract under section 53 of the Transfer of Property Act, it will not be called Benami transaction if the following conditions are satisfied. If following conditions are satisfied, it will not be called Benami. अब मैं इसको उल्टा बोलता हूँ, where there is a part performance of contract under section 53 of the Transfer of Property Act, it will be called Benami transaction. मैं उल्टा बोल रहा हूँ, it will be called Benami transaction if the following conditions are not satisfied. मैंने लिख दिया not satisfied, वहां लिखा था satisfied है तो बेनामी नहीं माना जाएगा, not satisfied है तो बेनामी माना। क्या कंडीशन है? There must be a contract. जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचे, there must be agreement to sell. Second condition, that agreement to sell should be registered. Third condition, appropriate stamp duty must have been given on this registered document. Fourth condition, possession is handed over. And fifth is payment is taken. आपने रजिस्ट्री नहीं कराई है, पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली, बाकी कागज ले लिए, तो आपको बता दूं, अगर ये रजिस्ट्री की रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होती है, एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड होना जरूरी है। लोग रजिस्ट्री कहते हैं पावर टू सेल, यहाँ तो हमारे लोग बड़े महानुभाव हैं, एग्रीमेंट टू सेल भी अपने नाम ले लेते हैं
और पावर ऑफ अटॉर्नी भी अपने नाम ले लेते हैं। ये पहली बार सुना है। पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम ले लो, अपने आप को ही ट्रांसफर करोगे? जी नहीं, पावर अटॉर्नी दूसरे के नाम से लो, वाइफ के नाम, और प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू सेल आप करो। प्रॉपर्टी तो आपने खरीदी है, तो पर्पस क्या होता है पावर ऑफ अटॉर्नी का? पर्पस ये होता है कि उसके बगैर, उसके वो साइन नहीं करेगा, मैं कर दूंगा उसके बेहाफ पे, क्योंकि मुझे अटॉर्नी मिल गई। लेकिन पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा, एग्रीमेंट टू सेल शुड बी रजिस्टर्ड, नहीं तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी अगर आपने रजिस्ट्री नहीं कराई, या तो रजिस्ट्री करा के खरीदी, नहीं तो सिर्फ पोजेशन ले लिया और कुछ कागज ले लिए तो बेनामी है, जब तक चारों कंडीशन सेटिस्फाई ना करो। नंबर 1, देयर शुड बी एग्रीमेंट which should be in writing, agreement to sell, it should be registered, appropriate stamp duty must have been paid, possession is handed over, payment received, but registration not done. ये सब कंडीशन है तो बेनामी नहीं है, ये कंडीशन नहीं है तो बेनामी मानी जाएगी। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, वो जमाने चले गए पावर ऑफ अटर्नी के, अब तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, नहीं तो इनकम टैक्स ना चाहे कुछ ना कहे, अब तो इनकम टैक्स में भी आ गया है, क्योंकि बलबीर सिंह मैनी की जजमेंट आ गई है, रंजीता कौर की जजमेंट आ गई है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तो पहले से ही जजमेंट थी, CS अटवाल की कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट है, लेकिन अब तो लॉ बन गया है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, अगर एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं आ तो पोजेशन मत लेना, पोजेशन मत लेना जब तक रजिस्ट्री ना कराओ। पोजेशन ले लिया और आप रहने लग गए तो वो क्या माना जाएगा? बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी। तो ये सेक्शन 2 क्लॉज 9 में एक्सप्लेनेशन। तो लीजिए, ये मैंने कर दिया 3rd सेक्शन। अब मैंने बोला 3(2) में बोला, अगर तो 1 नवंबर 2016 से पहले की ट्रांजैक्शन है तो मैक्सिमम पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट 3 साल का है और फाइन और बोथ। लेकिन अगर 1 नवंबर के बाद कोई बेनामी ट्रांजैक्शन की है तो उस केस में हम चैप्टर 7 में इम्प्रिजनमेंट के पोजीशन बताएंगे और फाइन बताएंगे, वो थोड़ी देर में बताऊंगा। क्लियर हो गया? अब एक और बात, एक बार बेनामीदार की प्रॉपर्टी चली गई, आप उसको रीट्रांसफर कर ही नहीं सकते अपने नाम, या किसी और के नाम करा ही नहीं सकते। आपने प्रॉपर्टी X के नाम खरीद ली, अब रीट्रांसफर करेंगे तो नल एंड वाइड है, रीट्रांसफर टू यू और एनी पर्सन नेम्ड बाय यू, वो नल एंड वाइड है। Once Benami, always Benami. Once Benami, forever probably. You cannot retransfer that. ये section 5 में लिखा है, section 5 of the Benami Property Act में लिखा है। 4 में तो लिखा है कि डिफेंस नहीं ले सकते, और 6 में लिखा है, और 7 में सॉरी, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली जाए। और जरा ध्यान से सुनना, ओल्ड एक्ट में लिखा था प्रॉपर्टी अक्वायर कर ली जाएगी, अब कन्फिस्केट किया जाता है। रीजन क्या है? जब प्रॉपर्टी एक्विजिशन होती है उसमें कंपनसेशन दी जाती है, नॉर्मली कंपनसेशन होती है, लेकिन जब कन्फिस्केशन होती है तो उसमें कंपनसेशन नहीं होती। तो पहले लॉ गलत बन गया था, वहां उन्होंने एक्विजिशन लिख दिया था बिफोर 1 नवंबर 2016, अब कन्फिस्केशन लिख दिया कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली जाए, एंड इट विल वेस्ट विद द गवर्नमेंट। विद हूम? विच गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। और 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा, नॉट ए सिंगल पेनी। 100% कन्फिस्केशन हो जाएगी विदाउट एनी पेमेंट टू यू। ये तो मैं आगे बताऊंगा सेक्शन से 27 में, और वो भी बताऊंगा। आइए, समझ में आ गया? 6 सेक्शन करा दिए, 7 से लेकर 23 सेक्शन तक अथॉरिटीज के हैं। अथॉरिटीज, पहले तो अथॉरिटी बताई नहीं गई थी, अब बता कौन कौन है। देखिए, नाम दे रहा हूं उनका। एक का नाम रखा इनिशिएटिंग ऑफिसर। ये इनिशिएटिंग ऑफिसर कोई नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पस। उसने 24 जोन बना दिए पूरे कंट्री के, और उस जोन का एक आदमी फिक्स कर दिया है कि ये माना जाएगा इनिशिएटिंग ऑफिसर। ये आपको पता है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी एक्ट CBDT के नीचे आता है, इनकम टैक्स वालों के नीचे आता है। तो उन्होंने क्या, इनिशिएटिंग ऑफिसर का रैंक क्या होगा? Either assistant commissioner of income tax, deputy commissioner of income tax, designated for this purpose। हमारे 22 या 24 जोन बनाकर एक अफसर सब जगह डेजिग्नेट कर दिया गया है, इसे इनिशिएटिंग। दूसरा है अप्रूविंग अथॉरिटी। अप्रूविंग अथॉरिटी मतलब ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये भी 22 और 24 अपॉइंट कर दिए, जो अप्रूवल लेगा इनिशिएटिंग ऑफिसर उनसे।
तो इनकी डेजिग्नेशन है अप्रूविंग अथॉरिटी, विच विल बी जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पस। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब जब प्रॉपर्टी आपके पास कन्फिस्केट हो जाएगी तो उसको संभालेगा कौन, एडमिनिस्टर कौन करेगा, उसका नाम है आईटीओ, और मेनली वो आईटीओ टीडीएस वाले हैं, आईटीओ उसको रख दिया है। अब आया उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अभी बनी नहीं है, अभी इस लॉ में नहीं बनी है, अभी तक लिखा है जो पीएमएलए में है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, वही एडजुडिकेट अथॉरिटी इसका भी काम देखेगी, जब तक कि इस लॉ के अंडर सेपरेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बन जाए। समझ में आ गया? उसके ऊपर है व्हाट यू कॉल ट्राइब्यूनल, अपीलेंट ट्राइब्यूनल। अभी भी अपीलेंट ट्राइब्यूनल यहाँ बना नहीं है, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ट्राइब्यूनल है वही ट्राइब्यूनल माना जाएगा। और उसके ऊपर बना दिए स्पेशल कोर्ट, उसके ऊपर बना दिए स्पेशल कोर्ट। कोर्टों का काम तो तब होगा जब आपको, जब किसी को इम्प्रिजनमेंट दिलवानी हो तो कोर्ट, स्पेशल कोर्ट का काम है, अदरवाइज स्पेशल कोर्ट का काम नहीं है। काम तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का है, फिर ट्राइब्यूनल का है, और ट्राइब्यूनल की बात नहीं माने तो फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ। लेकिन स्पेशल कोर्ट आर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन, वो उसके लिए स्पेशल कोर्ट बन गए। तो मैंने 7 से लेकर 23 सेक्शन तक कर दिया। आइए 24 सेक्शन करते हैं। वेयर द इनिशिएटिंग ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव एंड हैज मटीरियल इन हिज पोजेशन, ऐसे बोलता हूं, where the initiating officer has some material in possession and reasons to believe that such person is a benamidar of a property, he may issue a notice to the to show cause why this property be not treated as benami property. ये नोटिस दे रहा है सेक्शन 24 में। ये नोटिस है कि शो कॉज करो। इससे पहले समन करते हैं, समन अलग चीज है, वो तो इंक्वायरी करने के लिए कि बताओ, समन का अलग है। लेकिन ये शो कॉज नोटिस कब देगा? व्हेन ही हैज मटेरियल इन पोजेशन एंड रीजंस टू बिलीव। ये रीजंस टू बिलीव, मटेरियल इन पोजेशन कैसे आया? इंक्वायरी करके। मटेरियल इन पोजेशन, रीजंस टू बिलीव दैट सच एंड सच पर्सन इज ए बेनामीदार ऑफ ए प्रॉपर्टी, he may issue a notice within the time specified to show cause why this property be not treated as benami property. क्लियर हो गया? ये नोटिस विद इन स्पेसिफाइड टाइम देना है, और वो टाइम 30 डेज का है। अब सुनो क्या कहता है सबसेक्शन 2, क्या कहता है 24 सबसेक्शन 2। if the benamidar is, if the beneficiary is also known, if the beneficiary is also known, a copy of the notice will also be sent to beneficiary. एक कॉपी बेनिफिशियरी को भी भेज दी जाएगी अगर आपको पता है। अगर वो ट्रेसेबल नहीं है तो कैसे पता? नहीं तो बेनिफिशियरी को कॉपी भेज दी जाएगी। क्लियर हो गया? अब आ गया सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है if AO is if the initiating officer of the opinion that this person to whom notice has been given shall alienate his assets. Alienate means discharge, throw away, surrender his asset with the intention to avoid tax. तो उस केस में he may with the prior approval of the approving authority provisionally attach that property. वो उस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर लेगी। नोट इशू कर देगा प्रोविजनल अटैचमेंट का, वो लेटर इशू कर देगा प्रोविजनल अटैचमेंट। लेकिन प्रोविजनल अटैचमेंट इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। 90 दिन तक वैलिड होता है, क्योंकि 90 दिन के अंदर उसको पूरी रिपोर्ट बनाकर देनी है। 90 दिन में डिसाइड करना है अपने ओपिनियन में बेनामी है कि नहीं, फाइनल नहीं है, बेनामी है कि नहीं, वो अपनी ओपिनियन बना के फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देता है। तो 90 दिन तक वो प्रोविजनल अटैचमेंट होगी। अब ये हो गया, और 99% वो प्रोविजनल अटैचमेंट कर रहे हैं। अप्रूवल मिल जाती है कमिश्नर अपील से, सॉरी अप्रूविंग अथॉरिटी से। अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है? अपने डिपार्टमेंट का तो आदमी है, ज्वाइंट कमिश्नर और व्हाट यू कॉल एडिशनल कमिश्नर। अप्रूव ले ली, अटैच कर दी। अब नाउ सबसेक्शन 4 कहता है अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड विल बी गिवन टू द बेनामीदार। और आपको बेनामी उसको भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। उसके बाद वो डिसाइड करेगा क्या कि ये बेनामी है कि नहीं बनी।
वो नोटिस वो बेनामी है कि नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए वो जब डिसाइड करेगा, आपके पास 3 महीने 90 दिन के अंदर डिसाइड करना है कि ये बेनामी है कि नहीं है। अगर तो नहीं है तो फिर वो अटैचमेंट भी उठा लेगा और छोड़ देगा केस। अगर वो बेनामी है और ऑलरेडी अटैचमेंट उसको लगता है इट इज इन द ओपिनियन इट इज बेनामी और उसने अटैच कर रखी है, तो वो उसको एक्सटेंड कर देगा, कंटिन्यू कर देगा अटैचमेंट को टिल द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर वो पहले अटैच नहीं करी है तो अब अटैच कर देगा। तो अटैचमेंट करनी है प्रॉपर्टी उसने, या एक्सटेंशन अब करनी है या अटैचमेंट करनी है, ये अटैचमेंट। अब उसने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है, 15 दिन के अंदर अंदर आफ्टर डिक्लेयरिंग इट इज अ बेनामी प्रॉपर्टी, दिस इनिशिएटिंग ऑफिसर विल प्रिपेयर ए रिपोर्ट और रिपोर्ट को रेफर कर देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उसका काम खत्म। 15 दिन में वो रिपोर्ट रेफर कर देगा किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अभी बेनामी एक्ट में नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। वहां आपका केस चला गया और वहां पर कौन है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ऑन रिसीट ऑफ दिस रिपोर्ट फ्रॉम द इनिशिएटिंग ऑफिसर shall issue a notice to the following person within 30 days। 30 दिन के अंदर अंदर of the receipt of that report वो notice देगा। किसको? Number 1, a person who has been considered to be बेनामीदार, बेनामीदार को notice देगा। Number 2, a beneficiary, उसको notice देगा। Number 3, a person who has interest in that property including the bank if any। कोई बैंक भी कहते हैं हमारे को मॉर्गेज कर रखा है, जिसका इंटरेस्ट तो बैंक का भी हो गया ना, अगर वो मॉर्गेज कर दी प्रॉपर्टी, तो पर्सन टू हुम हु हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। एंड नंबर 4, अ पर्सन हु सेज आई हैव ए क्लेम इन दैट प्रॉपर्टी। कई बार भाई खड़ा हो जाता है, बहन खड़ी हो जाती है, मेरा भी इसमें राइट है, तो सबको चारों को नोटिस देगा टू अपीयर बिफोर हिम विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ दिस नोटिस। उसने नोटिस दे दिया है, किसने? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने। ऑन व्हाट बेसिस? वो जो रिपोर्ट इनिशिएटिंग ऑफिसर ने भेजी थी और उस रिपोर्ट को पढ़कर 30 दिन के अंदर नोटिस दिया टू अपीयर बिफोर। फिर वो आपको सुनेगा और सुनकर डिसाइड करेगा। कई बार नोटिस अगर ज्वाइंट ओनर है तो सब ज्वाइंट ओनर को दिया जाता है, और को ओनर से तो को ओनर्स को दिया जाता है। कई बार ये भी लिख दिया है अगर आपने एक ज्वाइंट ओनर को दिया बाकी को नहीं दिया तो भी वैलिड होगा, नोटिस फिर भी वैलिड होगा, वो नोटिस वैलिड होगा। फिर आप अपीयर होंगे और फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। इफ एंड डिसीजन ऑर्डर हैज टू बी गिवन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी within 1 year from the end of the month in which that report is furnished, within 1 year before the end of the month in which that report is submitted to the adjudicating authority। adjudicating authority ने कह दिया कि ये बेनामी है तो हो गई। बेनामी है तो वो कन्फिस्केट कर लेंगे। कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर कन्फिस्केट करेगा। लेकिन रुकिए, आपके पास 60 दिन का टाइम है टू फाइल अपील टू द अपेलेंट ट्रिब्यूनल। 45 डेज का टाइम है टू फाइल अपील टू द अपेलेंट ट्रिब्यूनल। अगर आप अपील फाइल कर देंगे तो फिर वो जो कन्फिस्केशन है अबेयस में रखा जाएगा। अगर अपील नहीं फाइल करेंगे तो वो फिर तो एडवोकेट टेक ओवर कर लेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब अपेलेंट ट्रिब्यूनल ने जजमेंट देनी है, उसके बाद अपेलेंट ट्रिब्यूनल की जो भी फाइनल होगा उसके बाद अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हैं तो हाई कोर्ट जाइए या सुप्रीम कोर्ट जाइए, वो तो बात अलग है। अब आइए, क्या होगा अगर ये बेनामी प्रॉपर्टी है तो क्या आपकी लायबिलिटी है? आइए चैप्टर 7 में जाए। पहले तो मैंने बोल दिया प्रॉपर्टी विल बी कन्फिस्केटेड विदाउट एनी पेमेंट, ये तो सेक्शन 27 में लिखा है। प्रॉपर्टी विल बी कन्फिस्केटेड विदाउट एनी पेमेंट। हु विल कन्फिस्केट? प्रॉपर्टी चाहे हरियाणा में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कन्फिस्केट। ये प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी क्योंकि ये प्रोविजन एक्ट इनकम टैक्स के नीचे है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कन्फिस्केट कर लेगी। अब ध्यान से सुनना, सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 बहुत जरूरी है, ये जरूर सुनिए। सबसे खतरनाक सेक्शन है। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी तो मैंने परचेज करी, इफ आई परचेज इट बिफोर
द इश्यू ऑफ नोटिस अंडर 24(1), तो उस केस में तो वो प्रॉपर्टी मेरे से नहीं ली जा सकती। सपोज बेनामीदार ने मुझे बेच दी, बेनामीदार ने मुझे बेच दी है, तो अगर बेनामीदार को नोटिस आ चुका है, उसके बाद मैंने खरीदी है, तो वो वापस ले लेंगे। अब मुझे क्या पता कि बेनामीदार को नोटिस आ चुका है? मुझे क्या पता 24(1) में बेनामीदार को नोटिस इशू हो गया, मेरे पास ने कहा प्रॉपर्टी है, मैंने खरीद ली। वो कहता लेट द बायर बी वेयर। अरे बायर बी वेयर क्या हो, क्या मैं नोटिस दूं, पब्लिक नोटिस दूं, मैं खरीद रहा हूं? मैं गया डिपार्टमेंट में, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, कि लिख दिया कि अगर नोटिस इशू हो गया तो उसके बाद तो ये प्रॉपर्टी वो नल एंड वाइड हो जाएगी, सेल नल एंड वाइड हो जाएगी, मैं पैसे कहां से लूंगा? वो तो पैसे उसको उससे रिकवरी करूंगा, वो देगा ही नहीं, सिविल लॉ में लड़ता रहूंगा। मैंने कहा ये क्या किया है? मैंने उनको समझाया था कि आप क्या करो, अपने पोर्टल में डाल दो, इनकम टैक्स के पोर्टल में डाल दो कि ये प्रॉपर्टी में हम नोटिस दे चुके हैं 24(1) में, लेकिन आज तक नहीं डाला है। वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है। अरे सर मुझे क्या पता, मैं शरीफ आदमी, आप प्रॉपर्टी बेचने आए और मुझे लग रहा है, और बीच में दलाल भी है, और मैंने कहा ठीक ही आदमी है, इसे खरीद लो, और मैंने खरीद ली, और मुझे क्या पता 24(1) का नोटिस ऑलरेडी आ चुका उसको। मैं तो गया, ये तो नल एंड वाइड हो गई, और मैं पैसे दे चुका हूं, मेरे नाम रजिस्ट्री हो गई है। या तो कम से कम रजिस्ट्रेशन वाले को ही बता दो कि भैया ये उसने इश्यू दे दी है, लेकिन कौन बताएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज तो बहुत है। अरे अपनी इनकम टैक्स की अथॉरिटी वो डाल दो पोर्टल में, और ताकि और इसको एडवर्टाइज कर दो कि भैया हमारे पोर्टल में देख लिया तो। नहीं तो मैं इमोबल प्रॉपर्टी खरीदते डर जाऊंगा। मैं कैसे खरीदूंगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा रिस्क हो गया है कि मुझे क्या पता उसके ऊपर 24(1) का नोटिस आ चुका है कि नहीं आ चुका है। लेकिन 27(2) यही कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदोगे। अब सुन रहे हैं, अशोक जी भी सुन रहे हैं, एसपी गोयल साहब भी सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं सर, दोनों को सुन रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो पहले देख लीजिए 24(1) का नोटिस तो नहीं आ गया उस प्रॉपर्टी में। कहां से पता करूंगा, मुझे ही बता दो, मैं कहां से पता करूं? वो बताएगा बेनामीदार? कभी भी नहीं बताएगा। अगर वो हेराफेरी कर रहा है तो आप उससे एफिडेविट भी ले लेंगे तो क्या होगा? पैसे तो आपने रिकवर करने, इनकम टैक्स वाले तो प्रॉपर्टी लेके बैठ गया, आप करते रहो रिकवर अपने पैसे, आप तो फंस गए ना। या तो मेरे 1 साल तक रुक जाओ, ये ऑर्डर आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये रिस्क है सर। अब जरा ध्यान से सुनना सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 60। पहले पर्मिबिलिटी पे आ जाओ, 53, 54, 55, where it is found that there is a property which is benami, and where the person with the intention to avoid payment of tax under any law, or to avoid payment to the creditors, or to avoid the defeat of the provision of law, commits any offense under this section, any transaction, then he shall be liable for a penalty, liable for a punishment or a rigorous imprisonment, which may be minimum 1 year and may extend up to 7 years. 1 से 7 साल की कैद है। किसको कैद है वो बाद में बताता हूं। If with the intention to avoid the tax, or intention to defeat the provisions of any law, or intention to avoid payment to creditors. कई बार क्रेडिटर को नहीं देना होता, क्रेडिटर भी बैंक को नहीं देना, बोगस नाम पे खरीद लेते हैं प्रॉपर्टी, to avoid payment. In that case, you will be liable for rigorous imprisonment, कठोर कारावास, which may be minimum 1 year and may extend to 7 years. And please note the word and, fine, which is 25% of the fair market value of that property. दोनों लगेंगे। मिनिमम कैद 1 साल की, कठोर कारावास 7 साल तक, और दूसरा फाइन, पेनल्टी कितनी? 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। दोनों, आइदर और नहीं है, दोनों। किसको लगेंगे? ये सुनने वाली बात है। नंबर 1, बेनामीदार को इंप्रिजमेंट होगी, बेनामीदार को पेनल्टी लगेगी। नंबर 2, बेनिफिशियरी को इंप्रिजमेंट हो सकती है। And number 3, one who abates that person to go for बेनामी ट्रांजेक्शन। और हमारे तो क्लाइंटों को आदत है कहने की, सर मुझे नहीं पता, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा था इस तरह कर लो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी गया, कितना? 1 साल से 7 साल तक। उसको पेनल्टी नहीं लगेगी,
1 से 7 साल तक जा सकता है। तो कोई एक यंग बॉय था अदीश जैन जैसा, खड़ा हो गया मेरे पास, सर कैसे कहते हो कि मेरे को कैसे प्रूफ कर देंगे कि मैंने कहा था, क्या प्रूफ है? मैं बेटा रुक जा, प्रूफ कुछ नहीं होता, एक मेरी बात सुन ले। अशोक जी, जब कोई नोटिस आता है ना किसी क्लाइंट का 143(2) का, तो वो मेरे पास आता है, वो कहता ठीक है ना, जाना, देखो मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, तू जा, स्क्रूटनी का नोटिस है कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। और जब अपना नोटिस आ जाता है 143(2) का, तो घबराहट हो जाती है, 2 दिन नींद नहीं आती है, मेरा नोटिस आ गया, अरे यार ये हो गया, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया है। और नोटिस आ जाता है तो घबराहट हो जाती है। सर एक नोटिस आ गया ना वहां से कि भैया क्यों ना आपके ऊपर वो पेनल्टी लगाई जाए, इम्प्रिजनमेंट किया जाए, तो आपका हालत खराब हो जाएगी। बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, चाहे बाद में छूट जाए, लेकिन हालत तो खराब हो जाएगी ना उतने साल जब तक छूटेंगे नहीं। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, अपने आप को अवॉइड कर लो, ये बेनामी ट्रांजेक्शनों के बीच में मत पड़ो। ये सीए, अब कुछ लोग थोड़ा सा छोटे गेन के लिए फंस जाएंगे, लेकिन अपने नाम को बचा लो। अब तो हर जगह बता रहा हूं, अपने नाम को बचा लो। हमने बहुत हार्ड वर्क किया सीए पास करने, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने हार्ड वर्क नहीं किया। एवरीवन हैज पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन डूइंग सीए। उसके बाद अगर ये सुनना पड़े या ये फेट हमारी हो, इससे अच्छा तो काम ही छोड़ दो, नहीं करो। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, अपने आप को बचा के चलना। जमाना बहुत खराब है, क्लाइंट कुछ भी कह देते हैं। अभी भी, अरे साहब सुनिए, जब ये क्लाइंटों का भरोसा मैं करता नहीं, 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ, 9 नवंबर 2016 को मेरे ऑफिस पूरा भर गया। 8 नवंबर को हुआ था, 9 को ऑफिस में सारे आ गए। क्या हुआ? कोई कहता सर मेरे पास 10 लाख है, कोई कहता 20 लाख है, एक आया 50 लाख है, एक आया 1 करोड़ रुपए है, एक आया कहता 10 करोड़ है, और एक मेरे पास कहता 100 करोड़ है। मैंने कहा रुक जा यार, एक चीज बता दे, जब मैं पैसे फीस मांगता था तो कहता था हमारे पास है ही नहीं, जहर खाने के भी पैसे नहीं है। ये कहां से जहर खाने के पैसे आ गए? 100 करोड़ प्लस करोड़। ये क्लाइंट हमारा सगा नहीं है, कभी पूरी चीज नहीं बताता, वो आपको उतनी चीज बताता है जितनी जरूरत है, उसके बाद छुपा लेता है। मैंने कहा भैया चला जाए यहां से, मेरे यहाँ कुछ नहीं होता। सर कुछ तो कर दो। मैं कहा मेरे यहाँ नहीं। लोगों ने 30% दिया ब्लैक मनी को ब्लैक कराने के लिए। अरे 40,000 का सोना खरीदा, 50,000 का खरीदा। खैर जिन्होंने 40-50 का खरीदा वो तो खुश हैं, क्योंकि 40-50 का रेट हो गया। लेकिन जिन्होंने 30% देकर कैश में कैश कन्वर्ट कराया, ब्लैक का ब्लैक ही रखा, मर गए ना बेचारे। और सर एक आया मेरे पास, चला गया, अरे 10-15 दिन के बाद आया, बड़ा खुश, क्या हुआ? कहता हो गया। मैं कहा हो गया तो अच्छी बात है। मुझे पता कहता है सर आपने करवाना है। ये देखिए ये हालत है हमारी। ये हमारा क्लाइंट आके मुझे पूछ रहा है सर आपने कराना है, और हमने तो सारी उम्र आपके कराया, और 30% से कम पे कराया, आपने तो 30% देकर ब्लैक का ब्लैक कराया। आप क्या कर रहे हैं? ये क्लाइंट सगे नहीं है, हम इनसे बच के रहेंगे, अपने आप को संभालेंगे। ठीक है काम तो करना है उनका, लेकिन ये नहीं है कि अपनी स्किन बचा के चलना। तो ये मैं बता रहा हूं, जरा अपने आप को बचा के चलना, इसमें पेनल्टी उसको भी लग सकती। और दूसरा, अब एक और सेक्शन है 54 कि अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, बेनामीदार से इंफॉर्मेशन मांगी या आपसे इंफॉर्मेशन मांगी या किसी बेनिफिशियरी से मांगी या बैंक, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, उस केस में इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 5 years एंड फाइन 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू है। अब कोई गलत इंफॉर्मेशन भी नहीं देना, कोई गलत इंफॉर्मेशन दी 6 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 5 साल की कैद है, और साथ में 10% फाइन भी है। लेकिन नेक्स्ट सेक्शन लिखा है 55 कि ये जो एक्शन इम्प्रिजनमेंट का है, प्रोसिक्यूशन का है, ये बोर्ड की अप्रूवल से होगा। इट कैन नॉट बी टेकन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। अब बोर्ड की अप्रूवल तो मिनटों में मिल जाती है, उनका क्या है, फट अप्रूवल दे देंगे। सो बोर्ड की अप्रूवल के बाद ये इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ये भी मैंने आपको बताया, लेकिन अब मैं मेजर सेक्शन बता रहा हूं, क्योंकि लोगों का ख्याल है 68, 69 तो बताओ, तो मैं पहले वो बता दूं, वो ही बताने जा रहा हूं। सर सेक्शन 60 में लिखा है द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ is in addition to and not
except otherwise provided in derogation of any other law in force. मेरा मतलब समझे क्या है? The provisions of Benami Property Act is in addition to the normal provisions of other act. इनकम टैक्स का अपना प्रोविजन है और इसके अपने प्रोविजन है. मैं 68 पे आ रहा था. 68 क्या कहता है? Where any sum is found credited in the books of accounts of the assessee, if books of account maintained by the assessee, and the assessee does not offer any explanation of the nature and source thereof, or offers an explanation with the opinion of the AO is not satisfactory, then this amount shall be deemed to be the total deemed to be the income of the assessee and taxable under the income from other sources. और आपको पता है 115 BBE में इसके ऊपर 78% टैक्स लग जाएगा. और प्लस अगर आपने इनकम नहीं दिखाई तो पेनल्टी भी लग जाएगी 271 AAC में 10%, मतलब 6%. क्या कहता है? Sum is found credited in the books of accounts maintained by the assessee. आपने अपना डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे पैसे जमा कराए या आप सेल कर दी. सेल भी फाउंड क्रेडिटेड इन बुक्स है. सेल कर दी आपने, डिमोनेटाइजेशन में सेल कर दी. तो आपने कहा मैंने सेल कर दी है. तो उन्होंने पता क्या किया है? ये पहली बार जिंदगी में देखा है अशोक जी, पूरी इंडिया में सारी असेसमेंट एक ही तरह की हुई है. सारी एक ही तरह की. मैंने कभी भी नहीं, एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर की असेसमेंट अलग अलग होती थी. यहाँ पे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिल गई थी, चुप करके ऐड कर दो. तो उन्होंने क्या किया? आपने अगर 1 करोड़ की सेल करी है, 1 करोड़ पे आपने प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट किया है, उसका जीपी तो लिया ही है, प्रॉफिट तो लिया है, उस प्रॉफिट को तो ले ही लिया और बाकी 1 करोड़ में भी आपकी इनकम ऐड कर दी. कमाल कर दिया सर. सभी ने यही किया है. क्या जो आपने सेल दिखाई है, अपनी किताबों में क्रेडिट करी 1 करोड़ रुपए की 9 तारीख 8 तारीख की, वो मुझे पता है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ तो नोएडा में एक आदमी ने 660 करोड़ का टर्नओवर किया 3 घंटे में. 660 करोड़ के बिल काटे हैं 2-2 लाख के. अरे 2-2 लाख के. वो कहते टाइम एंड मोशन स्टडी करा लो तो ये कट ही नहीं सकते इतने बिल. तो आपके पास इतने एम्प्लॉय भी नहीं है. 3 घंटे में कैसे कट गए 9 से 12 बजे तक रात को? सबको क्या पता है, मैं वो बताना नहीं चाहता. लेकिन ये बिल कटे हैं. आपने इन्वेंट्री दिखा है, वो खताब करके बाद में भेज दी, लेकिन बिल काट दी. मैं मानता हूं कि मुझे को तुम बेनामी में ले जाओगे, लेकिन सर ये 2 तरीके कैसे? डबल प्रॉफिट कैसे टैक्स करोगे? एक तो मैंने परचेज करी तो ही तो बेचा, और मेरे को वहां पर तुमने जीपी टैक्स कर दिया, नेट प्रॉफिट टैक्स कर दिया, और दूसरे केस में आप 1 करोड़ रुपया पूरा मेरी इनकम मान लोगे. अरे ये तो हो ही नहीं सकता. लेकिन ये किया है, सभी ने किया है. ठीक है, आप छूट जाओगे, इतना ही छूटोगे जितना प्रॉफिट एलिमेंट है, बाकी नहीं छोड़ने वाले. वो बाकी तो ITAT छोड़ेगा, उससे पहले कोई चांस नहीं. ये डीमोनेटाइजेशन का पैसा ये बेनामी के अंडर बहुत आ रहा है. अब किसी ने मुझे पूछा सर 68 सेक्शन है, मैंने बोगस कैपिटल है, गेन है, मेरा पेडी स्टॉक है, समझ गया, मेरा शेयर कैपिटल है, मेरा लोन है, और मैंने 68 मानकर सरेंडर कर दिया, 78% दे दिया या जो भी दिया, तो क्या मैं ये एंट्री जमा कर सकता हूं? क्या मैं कैपिटल को अपना मान सकता हूं? क्या मैं लोन को अपना मान सकता हूं? जो मैंने लोन लिया अब कहता हूं मेरा ही पैसा है, घुमा के आया है, क्या मैं अपना मान सकता हूं? क्या शेयर कैपिटल अपना मान सकता हूं? क्या कैपिटल गेन को मैं जमा कर सकता हूं? बिल्कुल मत कीजिए. अगर करेंगे तो कहेंगे तो आप तो खुद ही मान रहे हैं बेनामी ट्रांजेक्शन, मेरा ही पैसा घूम के आया है. वो बेनामी लॉ में पकड़ लेंगे आपको. उन्होंने तुमको छोड़ दिया है कि भैया तुम ये दे दो या विवाद से विश्वास में आ जाओ. विवाद से विश्वास आने के बाद ये मत समझना कि आपको बड़ा विश्वास आ गया. कोई विश्वास मत करना. सिर्फ वो इनकम टैक्स में आपको छोड़ रहे हैं, बेनामी लॉ में नहीं छोड़ेंगे. कभी आप सोचो अब तो मैंने कह दिया वो कैपिटल पे टैक्स मैंने दे दिया है, शेयर कैपिटल पे, या वो लोन पे मैंने टैक्स दे दिया है, वो जो क्रेडिटर मैंने राइट ऑफ किए थे वो कर दिए हैं, तो अब तो मेरी इनकम मैंने मान ली तो मेरा ही तो पैसा है. जी नहीं, जी नहीं, वो बेनामी माना जाएगा. बेनामी लॉ में आप खुद ही कह रहे हैं. लेकिन बेनामी में एक बहुत फायदा है सर. अगर मैंने किसी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया जमा कराए हैं, अगर वो ये कह दे मेरे पैसे हैं, तो कम से कम मैं तो बच गया ना, बेनिफिशियरी. वही फंसेगा ना. वो क्या फंसेगा? 78% प्लस 10%, यही है ना, और तो कुछ नहीं होगा. अरे 78, और वो इनकम डिक्लेयर कर देता सिर्फ 78%, लेकिन बाकी पैसे तो बच गए. जेल तो बच गई. अरे जेल तो बच गया.
बेनामीदार को कौन एडमिट कर ले, मेरे ही है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी पैसा है, मैंने ही जमा कराया था बैंक में 1 करोड़ रुपया। तो वो कहेगा ठीक है, तेरे पास कहाँ आया, तू तो नाई है, तू तो बार्बर है, सिर्फ तू तो वहां का एम्प्लॉई है। कहते नहीं जी मेरा है। वो कहेगा मैं तेरे को टैक्स लगाऊंगा। लगा लो सर, 115 भी लगाओगे, लगा लो। कितना? 78% लगाओगे, ले लो सर। उस वक्त तो 77.25 था, लगा लो। पेनल्टी नहीं लगाओ क्योंकि मैंने इनकम मान ली है। अगर इनकम नहीं मानेगा तो 10% पेनल्टी लगा ले यार। 83% हो गया, फिर भी कुछ बच गया, पेनल्टी नहीं लगी, कोई वो नहीं हुआ। क्या हुआ? वो भी नहीं हुआ, क्या कहते हैं, प्रोसिक्यूशन भी नहीं हुआ। तो आप तो बच गए। अरे जान छोड़ी, कुछ तो मिला, नहीं तो पूरा ही गया और सारा पैसा भी चला जाता। 25% कहां से लाके दूंगा, जेल भी जानी पड़ेगी 1 से 7 साल तक। और इससे अच्छा तो कह दो मेरा ही है, बेनामीदार कह दे तो, बेनामीदार कह दे तो मेरा ही है, तो बच जाएगा बेनामीदार में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 68 में कभी भी ये सोचकर कि मैंने इनकम टैक्स पे कर दिया है और मैंने पेनल्टी पे कर दी है या नहीं करनी थी, जो भी है उसको जमा मत करना, नहीं तो बेनामी लॉ लगा देंगे। ये 68 के बारे में बोल रहा हूं, यही 69, 69A, 69B, C, D में भी वही है। 69 क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। 69 तब लगता है जब आप अकाउंट्स नहीं बनाए, और बनाए या नहीं लगाए लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया। फुल्ली डिस्क्लोज, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट कि ये सोर्स बताओ, where in any financial year relevant to an assessment year assessee has made any investment and he does not give the nature and source of that investment, or he offers an explanation with the opinion of the AO is not satisfactory, then such amount which is unexplained shall be treated as the income of the assessee. तो वो इनकम मान ली जाएगी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें बुक्स अकाउंट जरूरी नहीं है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है और आपने इनकम कमाई तो 68 लग गया, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है तो आप 69 लगा देते हैं। 69 होता है इफ एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी एक्सेट्रा इज फाउंड और एनी वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग, जैसे सर्च के केस में सर्वे, money, bullion, jewelry, valuable article is determined and you don't offer any explanation, or you offer an explanation with the opinion of the AO is not satisfactory, then such amount which is found in your possession is deemed to be your income. तो उस केस में 69A लगा देते हैं। 69B, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, आपने एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करी, आपने 3 करोड़ रुपया दिखाया, वो कहता है ये फुल्ली डिस्क्लोज नहीं है, इसके तो 4 करोड़ रुपया होना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। ये 69B है। 69C है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। आपने बेटी की शादी करी, पता लग गया, उसे पूछा बताओ क्या सोर्स है बेटी की शादी का, पता ही नहीं है, तो वो आपकी इनकम मान ली जाती। या आपने कोई बोगस परचेज डाल रखी है, उसने कहा बताइए किसकी परचेज है, इसकी डिटेल बताइए, आप डिटेल नहीं बताते, सोर्स नहीं बताते कहां से आई, तो उस केस में भी यही है। लेकिन इसमें 2 मार हैं, इसमें तो खर्चा भी अलाउ नहीं होता, उस बोगस एक्सपेंस का खर्चा भी अलाउ नहीं होता है। 69C में लिखा इफ यू हैव क्लेम्ड इट द डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड। बेटी की शादी में डिडक्शन तो क्लेम नहीं करी ना, तो वहां तो वही लगेगा, या तो डिडक्शन भी क्लेम करी, तो ये 69C लग जाता है। और 115BBE क्या कह रहा है? Where the total income includes any income referred to under section 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, then such income shall be taxable at a special rate of 60% plus surcharge 25%। ये तो बढ़ा दिया था उन्होंने बैकडेट से, याद है? ये तो बैकडेट से बढ़ा दिया। यही तो मारा था कि मेरे पास एक आदमी आया अशोक जी, बड़ा खुश जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, 2 दिन बाद आया, कहता सर मैंने थोड़े दिन पहले ही सर्वे में 40 करोड़ रुपया डिक्लेयर कर दिया है, तो मेरी तो जान छुटी। मैं तो 40 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया, 30% देना है दे दूंगा, ना कोई इंटरेस्ट है ना पेनल्टी। मैं कहा ठीक है भैया तेरी किस्मत अच्छी है। लेकिन थोड़े दिनों में जब दिसंबर आया और दिसंबर में वो जो अमेंडमेंट एक्ट आई तो बैक डेट से कर दिया, तो रोने लग गया, सर ये क्या हुआ, अब 40 करोड़ रुपए पे मुझे 77.25% टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मैंने नहीं कराया, मैंने नहीं कराया है, ये उनको पता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब ये आया था, मैं आपको बताऊं, तो इन्होंने शोर मचाया था कि हम 200% पेनल्टी लगाएंगे। तो मैं गया था जेटली जी के पास, भाई जी कौन से लॉ के अंदर 200% पेनल्टी लगाओगे, जरा बता तो दो। आप कह रहे हो 200% पेनल्टी, कहता वो जो 271AA, मैं कहा जी बेकार मत करना। कहता जी, वो कहने लगा जी हम तो 200%, मैं कहता लगा ही नहीं सकते। कहते कैसे? मैं कहता मेरे को तो इतना पता नहीं है, आप रेवेन्यू सेक्रेटरी से बात कर। मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास गया, रेवेन्यू सेक्रेटरी को पता लगा, कहता क्या
हमारे तो चेयरमैन साहब ने कहा और मेंबर ने कहा कि 200% पेनल्टी लगेगी। मैं कहा जी कुछ नहीं होगा। कहता जी चलिए हम दोनों वहां चलते हैं। हम वहां बैठे, रात को 12 बज गए। इन्होंने कहा जी हम सेक्शन 68 लगा देंगे, 69 लगा देंगे, 69A लगा देंगे। मैं कौन लगा देगा सर, क्या बातें कर रहे हो, आप लगा ही नहीं सकते। 68 तो एओ ढूंढता है, इफ इट इज इन द ओपिनियन ऑफ द एओ। मैं तो खुद ही कह रहा हूं मेरी इनकम है और मैं 30% दे रहा हूं, मेरे को कैसे लगा दोगे? मैं तो खुद ही उसको इनकम मान के दे रहा हूं, आप मेरे को लगा ही नहीं सकते। वो कहते नहीं, जिसने लॉ बनाया उसको बुलाए। उसको बुलाया गया। 3 घंटे बाद वो कहने लगे सर गलती हो गई। आहूजा साहब जो कहते हैं वो ठीक ही कह रहे हैं, हम पेनल्टी तो लगा ही नहीं सकते। अब इनकी जान निकल गई कि पीएमओ वाले तो खा जाएंगे, पीएम वाले, कि आपने तो ये डिमोनेटाइजेशन में 200% डरा दिया था हमें, अब क्या करें? मुझसे पूछे क्या करना चाहिए। मैंने उनको कहा जो वो स्कीम आई थी ना, आईडीएस स्कीम, उसको एक्सटेंड कर दो। कर देते तो कितना अच्छा होता, 45% में जान छूट जाती। लेकिन वो कहते हैं हम कर नहीं सकते क्योंकि पार्लियामेंट से अप्रूवल अभी डेट थी, हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर एक नया सेक्शन निकाल के ना, जैसे वो सर हुआ करता था ना, सर सीजर में 60% दो, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने कहा एक्स्ट्रा सेक्शन निकाल के लिख दो 50% दो, कोई सवाल नहीं पूछेगा, हम पूछेंगे ही नहीं आपसे कुछ भी। ये कहा गया था, लेकिन क्या हुआ कि वो माने नहीं पीएम वाले, और फिर वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाकर सारी कंट्री को गरीब कर दिया। कुछ हुआ ही नहीं उससे। तो मैं ये बता रहा हूं कि बहुत मुश्किल पड़ने वाली है ये वाले सारे केसेस। अब मैं आपसे सवाल लेता हूं, जो भी सवाल आपके पास है। मैंने काफी कुछ कवर कर दिया, अब जो आपने पूछना है जरूर पूछिए। सर ये 115B तो बहुत ही एक्सेसिव है, इसका कुछ नहीं सुनेंगे क्या? 115BEE? हाँ, सर मैं बहुत कुछ कह चुका हूं, मैं बहुत कुछ कह चुका हूं। DBE की बात करें ना, 77.25 और 78%। मैं बहुत बार जा चुका हूं और इस बार भी मैं गया था कि अब तो ये आया हुआ है। पहले तो मैंने इनको कहा विवाद से विश्वास को भी ले आओ वहां पर, क्योंकि 77.25 देकर तो फिर कोई विवाद से विश्वास में तो आएगा नहीं। तो मैंने कहा उसका 50% कर दो, तो आपके लोग आ जाएंगे विवाद से विश्वास में, क्योंकि वो नहीं तो पेनल्टी के लिए 10%, 6% के लिए थोड़ी जाएगा विवाद से विश्वास में। तो मैंने उनको समझाया था, सुन रहे हैं, कोशिश कर रहा हूं, अभी कुछ कह नहीं सकता। मैंने उनको ये भी बोला अब तो 115BB बंद कर दो। वो तो उस वक्त आया था जिस वक्त ये था डिमोनेटाइजेशन, तो आपने कहा था 1 साल और रुक जाओ, हम बंद कर देंगे। अब 1 साल करते करते 3 साल हो गए हैं, सब इसको हटाओ। और वो जेटली जी चले गए, वो सुनते थे हमारी बात। अब ये जो है मैडम, इनको तो पता ज्यादा, मतलब उनका चलती नहीं है, क्या हो सकता है मैं नहीं जानता। कोशिश कर रहा हूँ कि 115BB को हटाओ, ये तरीका गलत है। पावर है, सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन लॉ है सर, सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन लॉ है। बचेगा क्या इसमें? और अब तो आपने और भी डाल दिया 271AAD बोगस एंट्री और वो ओमिटेड ऑफ एमिशन ऑफ एंट्री। आप तो छोड़ ही नहीं रहे, किसी भी तरीके से पकड़ लिया चारों तरफ से। कर क्या रहे, देखो क्या होता है सर। लेट अस होप। और बोलिए सर, और सवाल पूछिए। क्वेश्चन कौन? हाँ जी दीजिए, आप लेंगे क्वेश्चन आंसर्स? आपने किसी को डायरेक्ट लेना है, डायरेक्ट ले लें, नहीं तो आप लेते जाइए, बताते जाइए। मैं पता क्यों नहीं पढ़ता चैट, क्योंकि कई बार लोग पता क्या कहते हैं, चैट में लिखा हुआ ये मेरा सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये पढ़ते नहीं। आप पढ़ो, मेरे से पूछो, मैं सारे सवाल का जवाब। आदि जी प्लीज आप देख लीजिए। जी आदि जी बोलिए। राजीव पुरी जी का क्वेश्चन है जी, इफ अ पर्सन बाय लैंड्स इन नेम ऑफ बी, ए पेज द चेक डायरेक्टली टू सेलर सी। हाँ जी, तो वो बेनामी तो है। Will be treated as benami. If it is immediate or future benefit of the person who has paid that payment, तो बेनामी। ठीक है सर। बेनामी नहीं तो गिफ्ट दो ना, आप गिफ्ट दे के ले लेते। सर अगर लोन दें तो कवर्ड है क्या? लोन नहीं कवर्ड होता, गिफ्ट ही देना पड़ेगा। लोन दीजिए, कुछ नहीं। हाँ जी, लोन में कोई दिक्कत नहीं, लोन दे दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके सरकारी आदमी लोन भी नहीं देते ना सर। ये सरकारियों के लिए, ये सरकारी आदमियों के लिए ज्यादा लाया गया था बेनामी लोन। सरकारी एम्प्लॉइज के लिए ज्यादा लाया गया था। पैसा तो उनके पास ज्यादा है, हमारे पास क्या है? हम तो खाने पीने का थोड़ा बहुत कमा लेते होंगे, वो तो आटे में नमक की बात है, उनके पास तो नमक ही नमक है।
चलिए सर आगे बताइए। सीए कनिका जैन का क्वेश्चन है, सर इज देयर एनी वे टू इंक्वायर अबाउट इट ऑन कस्टमर पार्ट, कि ये बेनामी जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, ये हम भी चेक कर सकते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है? 24/1 का इशू नहीं हुआ, यही कहना चाहते हैं ना, 24/1 का नोटिस अभी इशू नहीं हुआ। तो जहां वो प्रॉपर्टी है ना वहां पर, और जहां उस एसएससी का ज्यूरिडिक्शन है वहां पे पता कर लीजिए बस। जहां उस एसएससी का ज्यूरिडिक्शन है जिस एओ के पास, उससे पता कर लीजिए, या प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड है वहां पता कर लीजिए, नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगी। एसएस वहां के किससे, इनिशिएटिंग ऑफिसर से, वहां के जहां पर आपकी असेसमेंट होती है वहां पर जो इंश्योरेंस ऑफिसर है, या जहां प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है वहां पे जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है, उससे पता कर लीजिए तो बच जाएंगे। जी सर, प्रमोद शर्मा जी का क्वेश्चन है, प्लीज एनलाइटन अबाउट द बर्डन ऑफ प्रूफ इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रूविंग बर्डन गिल्टी। ऑफ प्रूफ तो हमेशा शिफ्ट होता रहता है। पहले वो कहेगा प्रूव करो कि ये बेनामी नहीं है, आप कहोगे ये डिटेल है, फिर वो करेगा, फिर आपके पास बाउंस होगा। अल्टीमेटली बर्डन टू प्रूव, ओनर्स टू प्रूव डिपार्टमेंट का है, लेकिन डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछता जाएगा, जवाब देते रहेंगे, पूछता, इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग। पहले आपके पहले आएगा, फिर वो आपको भेजेंगे, फिर वो आप उनको भेजेंगे, फिर वो और सवाल करेंगे, इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग। फाइनली प्रूफ ओनर्स है, डिपार्टमेंट का है टू प्रूव दैट इट इज बेनामी। फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट कर लेता है वो डिपार्टमेंट। चलिए जी, गौरव जी का क्वेश्चन है सर, सपोज समवन हैज अ ब्लैक मनी एंड वांट टू टेक एफडी इन नेम ऑफ हिज मदर बाय ट्रांसफरिंग मनी थ्रू गिफ्ट, इज इट पॉसिबल? गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए माय डियर, गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए। हमारी कंट्री में वैसे भी गिफ्ट दी नहीं जाती है, ली जाती है। देता कौन है गिफ्ट किसी को? गिफ्ट तो लेते हैं। और गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए। अगर जेन्युइन नहीं हुई तो 78% टैक्स लगेगा, मैं पहले बता दूं। और अगर वो टैक्स अगर आपने एग्जेम्प्ट कराई है तो 10% पेनल्टी भी लग जाएगी। गिफ्ट शुड बी जेन्युइन, इट शुड बी फ्रॉम नोन सोर्स, अननोन सोर्स से नहीं। ये ब्लैक मनी की बातें ये वेबिनार पे बिल्कुल मत करा करो, कोई ब्लैक मनी नहीं है हमारे पास। वी ओनली बिलीव इन व्हाइट। चलिए आगे बोलिए, चलिए। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक क्वेश्चंस और कोई मेरे को दिख नहीं रहे, चैट में है कुछ। बता दिया ना कि भैया आपको 68 69 में तो लगेगा ही लगेगा, जो मर्जी कर लो, जमा मत करना प्लीज। विश्वास से विश्वास जाने के बाद भी अपना जमा मत करना, ना वो लोन को जमा करना, ना को कैपिटल को जमा करना। इवन तो कंपनी लॉ भी नहीं अलाउ करता वो तो कैपिटल को जमा करने का नाम, और ना ही आप ये कैपिटल गेन को जमा करना। वो तो आपने सरेंडर करा है और इनकम टैक्स के लिए, बाकी जगह के लिए नहीं। अच्छा सर, वो कैपिटल गेन्स का भी आप जमा नहीं कर सकते? कैपिटल गेन में तो आपने जमा करा रखा है ऑलरेडी। नहीं मींस वो तो आपने ऑलरेडी जमा किया हुआ है मैडम। पेनी स्टॉक्स सेल करके जो कैपिटल गेन से एटलीस्ट वो बुक्स में वो तो ऑलरेडी जमा किया हुआ, तभी तो टैक्स दे रहे हो। तभी ना, बस वो तो गेन कहाँ हुआ? शेयर कैपिटल का नहीं कर सकते। नया शेयर कैपिटल नहीं कर सकते, कैपिटल गेन तो जमा किया ही हुआ है। तो कैपिटल गेन आया कहाँ से आपको? आई थॉट कि आप वो उसके लिए भी मना कर रहे हैं, इसीलिए। Any other questions? Any other? I think और agriculture. Sir, एक question है, whether the agriculture land is also treated as asset for benami? Why not? Agriculture. को मैं कैपिटल एसेट थोड़ी बोल रहा हूँ। Any asset, property of any kind, movable, immovable, tangible, intangible, corporeal, non-corporeal, तो क्या आता नहीं है उसमें एग्रीकल्चर लैंड? सब कुछ आता है। ऐसे कैसे कह दिया नहीं आता? हाँ, और पूछिए। Sir, एक क्वेश्चन है, if a case benami has been initiated against a person and his property has been attached and he has lost the case in all forms, but in prosecution, in the prosecution of guilt for imprisonment, he has been found acquitted, then what will be the fate of attachment of property? देखिए, imprisonment से acquitted हो गया। imprisonment में लिखा है that you have entered into a benami transaction to avoid payment of tax, to defraud the creditors, or to not defeat the provisions of the law. वो acquitted क्यों हुआ?
ये तो मुझे को तो देखना पड़ेगा। अभी तक तो एक भी एक्यूटेड नहीं हुआ, अभी तक तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं हुए, तो ज्यादा अभी एक्यूटेड कैसे हो गए मुझे तो समझ में आया नहीं। इनको ये इमेजिनरी इमेजिनरी होगा सर क्वेश्चन, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, क्योंकि एक्यूटेड करना तो वो अभी तो मुझे समझ में नहीं आया। अगर एक्यूटेड कर देंगे तो डिपार्टमेंट चला जाएगा अपील में, छोड़ देगा डिपार्टमेंट। ये तो डिपार्टमेंट की तो प्रॉपर्टी भी है, तो डिपार्टमेंट अपील में जाएगा हाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट से। डिपार्टमेंट छोड़ देगा क्या एक्यूटेंस? नहीं, वो करेंगे। ये सब इमेजिनरी सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल है। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट को छोड़ दिया वो तो बात ही अलग है, उसने थोड़ी किया, वो बेनामीदार थोड़ी है, उसको तो वैसे रगड़ दिया। Sir, thank you. If any member have any query, he or she may please intimate us so that. कोई खास जरूरत नहीं है ही और शी कहने की। वैसे तो शी कह दो तो शी इंक्लूड्स ही, शी में ही आता है, ही में शी नहीं आता है। लेकिन लॉ जनरल क्लॉजेज एक्ट कहता है wherever you use the word he, it also includes she. So therefore कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, he includes she और she includes he। वैसे she he includes he। Okay, sir. Thanks a lot. It's my immense pleasure to present vote of thanks on behalf of SR branch of NIRC of ICI to our chief guest, first of all, CA Hansraj Chugji, Central Council member. And I think I don't have words in my dictionary to express my gratitude and thanks to Dr. Girish Ahuja sir, from whom we learn the text, from whom we understand what is tax and how to read the Income Tax Act. And I think most of the members of SR branch, not only the SR branch, many others also, learn the taxation from CA, Dr. Honorable CA Girish Ahuja ji. A lot of thanks. And I also thank you Ashok ji, thank you Goel साहब, thank you आशा जी। या सीनियर पहले सीनियर का नाम पहले ले लिया तो बुरा मत मानना, चेयरपर्सन का नाम तो लिया ही जाता है। Thank you very much and thank you Adish ji and everyone. Thank everyone. Please take care. Please take care. Stay healthy. Thank you all the members who are present here to make this event a success. Thanks a lot. Thank you Girish ji so much. All the best. Thank you. Take care, sir. Thank you. Thank you. Okay, madam. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you Adish ji. Thank you Ashok ji.